सो अभी जो यहाँ है ना, ये जो मेरा नेचुरल ग्राउंड है, से आई परचेज द लैंड फॉर दिस प्रोजेक्ट, and this land is like this. When I got it, I need to fill this land by some filling materials. So I purchase the murum and I fill it this murum here. Okay, so this is the case, and actually they have taken the bore like this, geotechnical people. So what they find, they are finding this filled up material here. Then they, are you getting this? That is this filled up material. So this land has been filled up by some material previously, and they have encountered in this zone when they taken a borehole or core log, we can say. So this is that core filling material, then silty clay sand. So in this zone, they are getting silty clay sand, then they are getting silty sand and gravels here in this zone. Then reddish weathered fractured amygdaloidal basalt, AB. So in this zone, they are getting this, and this is grayish fractured basalt in the layer 5. So 1, 2, 3, 4, and 5. And what is this level? This is 0. My ground level is 0, and this is 3 meter below. Then this is, एक्सक्यूज मी सर, yes. सर अगर ये लेयर में है तो फिर उसको ऐसे लिखना चाहिए था ना, 0 to 3, 3 to 4.5. तो वट एवर ये हैज रिटर्न, इसका मतलब तो ये है कि 0 to 4.5 तक कंटिन्यूसली, मतलब नहीं नहीं, ये एक्चुअली वैसे ही चाहिए। सी अभी क्या है, देयर में बी मिस्टेक्स एक्चुअली, ये ऐसे होता है मतलब। ओके, अभी क्या है, दिस मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग डिफरेंट वेरिएशन थ्रू आउट दिस आल्सो। तो ऐसे होता है। अभी इसका है ना, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना, आई विल शो इट बिकॉज एट द एंड दे हैव शोन इट, दैट विल बी क्लियर देयर। So 0 to actually it should be in layers, because see here they are showing 6 to 10, correct? So we will clear it out in that. Okay, so this is the core logging. I will show you at the end of this. Let's try to understand. So they are giving the classification layers and the levels at which different material they are getting, soil, rock, or any filled up material also. These are some other details. See, we are not interested too much in detail. Number of boreholes, 11 numbers they have taken in the project, and 10 meter depths they have taken for the borehole. This is they are giving some history about the surrounding area and so on. Yes. So the borehole depth is 10 meters almost for all the boreholes, which are 11 numbers. And layer 1, 2, 3, 4, as I said, they are giving this information. So here they are giving different thicknesses of layers actually. Are getting the 10 meter is the borehole depth. So they are getting first layer as a silty clay, because there are 11 boreholes and they may get different thicknesses for different boreholes of that, maybe filled up soil, clays, or whatever. Okay. So for borehole 1, they are getting 5 meter thickness of silty clay, then AB, amygdaloidal basalt 2 meter thickness, and compact basalt 3 meters. For borehole, this is for 10, for 11, this is 3. So they are getting different thicknesses. But out of this, they generally take the conservative approach while giving the SBC. So the one which gives more results, rather less SBC, we can say, they give us those suggestions to us. These are also other details, we have seen in the geotechnical investigations, these Atterberg limits and so on. So we are not much bothered now as a structural engineer in this, and they even calculate the rock capacity also. You might have learned RQD and so many things, RQD numbers in geotechnical subject. They're giving a lot of these details because that is their area of expertise. Finally, we should know only basic things. And they are saying where the bedrock is close to the surface, it is possible to level it off and build directly on it. So they are giving us some guidelines.
and they're saying shallow foundations are also called spread footings or open footings or isolated footings, and they're proposing that. Then yeah, so they are giving, see, net sep bearing capacity, and if you see borehole 1 is giving us the 35 Newton. So actually they had given a lot of SBC for different locations. For our purpose, we have taken the conservative approach. I think what our DBR says, just a moment. Yes, borehole 1. So we are taking the results of borehole 1 as a conservative approach, and which is 35 Newton ton per meter square at 4.5 meters below the ground. .5 meters. Okay. Actually, as a designer, we have a choice. We can optimize the things if you really have the confidence that you can use this 60 also. But I would suggest, if you look at the numbers 40, 35, then 60, 40, 40, then 35. So 35 is coming 1, 2, 3 times, and 40 coming from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times. I would suggest, as for this kind of variations, let's go for the conservative approach of 35. This is our choice because they don't tell you what SBC you should take. They are giving a lot as per the boreholes, different SBCs for different boreholes. Now, as a designer, it is our lookout and our decision to take the SBC. Generally, we can take conservative approach because we cannot rely that, because these are the samples, 11 samples, and area of the project may be bigger than that. So sampling means there is a possibility that even near to 60, let's say 5 meters near to 60 this location, there may be 35 capacity or maybe less than this 60. So it is better to go for the lower values in this case. And they have also mentioned, actually, a geotechnical expert, that go for 35 in their summary. Okay. Now the settlement values they have given, so many information they are giving. So the important aspects are, we should know what kind of soil strata is there below the ground, at what level what strata is there, and what SBC is there, and is there any water table there available. These are the borehole log sheets. So what I was saying. Borehole data given for water table, sir? Water table, they mention, actually, they don't show in the boreholes. They mention at what level they got the water, if it is there. For this project, we didn't get any water table till that height. So see, we are interested in the water table level up to 4.5. If it is below that, then we are not bothered. But they are not mentioning that also. When it is below this, they don't generally give it, because they are giving the foundation depth at 4.5 meters. And let's say my water table is at 6 or 7 meters. I'm not concerned regarding this. Let's say this is my 7 meters, let's say. So I'm not concerned about this water table because my foundation will rest here like this. Okay. Now you're asking how they are giving. So it is actually ordinate 0, 1.5, 3, 4.5. It is in the form of ordinates. Okay. Here it is clear. So these are the ordinates they are giving. So it is a scale 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And they are mentioning the levels. Ordinate matlab sir, I know the meaning of ordinate, but यहाँ पे 0 minus 0 minus 1.5. This is minus because 0 is ground level. Below ground we are going, so they are considering as a minus. So this is minus 1.5 meters. So from 0 to this distance is minus 1.5 meters. From here distance is 3 meters. From here, so this is the origin point from which we are measuring the distances. Okay. And if you want to calculate the thickness, वो डिफरेंस ले लूंगा. ये तो 3 डिफरेंस आएगा इसका. ये 1.5 आएगा, ये 1.5 आएगा, and ये 10 minus 4.5 means 5.5. Okay. This thickness, मतलब इसका thickness ये वाला, ये जो ले रहे हैं ना सब. So this way they give the log sheets.
हमारे लिए इसका क्या यूज है, ये लेयर हो ना हो? नहीं, नॉट मच डिफरेंस, बट ये क्या होता है, वी शुड स्टडी द प्रोजेक्ट इन टोटलिटी। एज इन जनरल वी शुड नो कैसे स्टार्ट है नीचे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है व्हेन वी डू द एक्सकेवेशन फॉर द फाउंडेशन, सी बोर लॉग इज अ सैंपल लॉग्स, अभी 11 लॉग्स है। अगर ऐसे हो गए कि बीच में मुझे कहा तो एक स्टार्ट आया वेयर द बोर लॉग्स वेयर नॉट टेकन, एंड वहां अगर मुझे लगा कि अरे ये थोड़ा सॉफ्ट स्टार्ट लग रहा है, तो आई कैन गो बिलो दैट ऑल्सो। अभी ये 4.5 तो दिया है हमें, करेक्ट, कंसल्टेंट ने। अभी 4.5 पे सभी हमने एक्सकेवेशन पूरा किया बॉक्स, अभी पूरा बिल्डिंग मेरा आने वाला है, ऐसे मेरा बॉक्स है समझो, क्योंकि हमारे ग्राउंड लेवल के नीचे है ना ये 4.5 मीटर्स हमारी बिल्डिंग, तो आपको यू नो दिस ना, वी आर Yes. पुटिंग आवर फाउंडेशन टिल 4.5। लेकिन ऐसे समझ में आया मुझे कि अरे ये जो स्टार्ट है यहां था ना, यहां तक, ये बीच में ना सॉफ्ट ही है अभी तक, गेटिंग, इट हाँ मे हाँ बी हाँ। सॉफ्ट ना, बिकॉज कोर लॉक तो सभी पूरे एरिया में लिए नहीं ना, 11 कोर लॉक है फॉर दैट प्रोजेक्ट। सो देर इज अ हम्म। पॉसिबिलिटी दैट वी डोंट गेट हार्ड स्टार्टा which we are expected to put the foundation on. So अभी ऐसे कुछ तो रहेगा, तब we have to excavate this portion also. अगर मेरा यहाँ फाउंडेशन आएगा तो मेरा फाउंडेशन यहाँ आएगा ऐसे। तो कैसे पता लगेगा कितना एक्सकेवेट करूं? वो तो 4.5 चलो उसने दे दिया। नहीं, उन्होंने दिया है, लेकिन ये सॉफ्ट स्टार्ट जब तक है ना हमारा है ना, देर इज पोकलेन वगैरह पता रहेगा। एक्सकेवेशन देखा है पहले कभी? नो। एक्सकेवेशन दे डू इट बाय पोकलेन। सो उसमें क्या रहता है, पहले तो वो जेसीबी का जो ये रहता है ना, ऐसे they excavate by JCB। JCB I am just using the word हाँ, because ओके it's ओके। very local use। ये बकेट है ना, ये बकेट से एक्सकेवेट करते हैं। जब तक ये बकेट है ना अंदर जाता है तब तक वो एक्सकेवेट करते हैं, बाद में हार्ड स्टार्टा लगने के बाद ये बकेट है ना वहां ऑपरेट नहीं होता, और that starter we have to say generally it is a hard murum or medium murum we can say, where the bucket only can excavate। after that they use the needle, ऐसे नीडल रहता है विच कैन ब्रेक द रॉक्स इन द रॉक्स। ओके, तो ये रॉक निकाल के, ये जो बोल रहे हैं ना अभी 4.5 मीटर इज अ रेडिश मॉडरेटली वेदर्ड बसल्ट, so it is a hard rock, we are going on the hard rock level for this project। 350 is near to the hard, we can say hard murum to hard rock, that is the SBC which is 350 generally। Sir, okay, yes, sir, if the rock is not available at in case there will be not uniform distribution of the hard strata means, then what we have to do, या sir? तो see ये ऐसे आ जाएंगे ना, so I will go there now, I will go below 4.5 at the that typical location। अभी यहाँ मैं यहाँ जाऊंगा, यहाँ मेरा फुटिंग ये लोकेशन पे आएगा, ओके, यहाँ मेरा ये लोकेशन पे आएगा फुटिंग, सो माय कॉलम हाइट विल वेरी, ओके, ऐसे आएगा, समझ में आ रहा है तो क्या? मेरा डेटा तो सारा वेरी हो गया फिर, वो जो एनालिसिस किया मैंने पहले ई टैब में सब। ये गुड तो क्वेश्चन, फिर गुड क्वेश्चन। अभी ये 4 पॉइंट, हाँ, सो वो वेरिएशन तो हमारा इसलिए तो सब क्या बोलते हैं, इफ द वेरिएशन इज नॉट मोर देन 10% देन यू कैन योर रिजल्ट यू कैन टेक, बट इफ यू फील कि अरे मेरा 4.5 का कॉलम मैंने मॉडल किया है इसमें टैब में, एंड आई एम गेटिंग 6 मीटर्स ऑफ स्टार्टअप, मतलब 6 मीटर आ रहा है मेरा कॉलम का हाइट, तो देन दिस अजम्पशन इज क्रिएटिंग रॉन्ग, मतलब फिर मॉडल चेंज करना पड़ेगा। अब आप कह रहे मतलब हो कि 10% मीन्स 4.5 में मतलब 0.45 वो ऐड करूं? या तो अगर, हाँ, तो इसका जो समझो 4 मतलब कितना 5 आएगा, इसका 5 मीटर इज ओके, या इसके बिलो आया तो नॉट बैड, क्योंकि हमारा 4.5 इज 4 से ज्यादा है, तो 4 आया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 5 और उससे ज्यादा आ रहा है तो देयर इज अ क्वेश्चन टू बी थिंक, बिकॉज कॉलम का हाइट बढ़ने के बाद द डिजाइन गोज ऑन द हायर साइड, सो वी हैव टू चेक इट, we have to only change the model and base levels and check for the design। नहीं but if it is near about 10%, 4.5 से 5 रहेगा तो we can accept that, but if it is really going for 6 meters or more than that, then definitely we need to check it out। but there is one more solution to this, if you don't want to change the ETAP model, then you can add one beam। अभी वो बताता हूँ मैं। तो कभी कभी क्या होता है कि चेंजिंग द मॉडल्स एंड वो इतना डिजाइन, क्योंकि इसलिए ना फाउंडेशन डिजाइन करने के लिए हम ये जियो टेक्निकल रिपोर्ट लेते हैं, और अगर वहां वेरिएशन आया बहुत ही, देन वी हैव टू चेंज द मॉडल, देयर इज नो अदर वे।
अभी उसमें और एक चॉइस रहता है, लेट्स से this is my column, this is my plinth beam, let's say, okay, and this is my footing. समझो कि ये मेरा 3 meters है, and as per my geotechnical report this is my case and I'm getting this data, but in one case I'm getting the footing at very low level, यहाँ आ रहा है मेरा, तो समझो कि मेरा कॉलम का हाइट है ना, जो मेरा प्लान्ड था, ये 3 का मेरा 5 मीटर्स हो रहा है, समझो लेट्स से 5 मीटर्स आ रहा है, हाँ, एंड विच इज रियली वेरिंग, मेरा मॉडलिंग तो 3 मीटर्स का था और ये 5 मीटर साइड पे आ रहा है फॉर पर्टिकुलर कॉलम. सो इट इज अ पॉसिबल दैट आई कैन कनेक्ट दीज कॉलम्स बाय वन एडिशनल बीम. यहाँ भी कॉलम रहता है कुछ तो, करेक्ट. दैट मीन्स माई इफेक्टिव height got reduced to 2.5 and I am interested in the effective height of the column. Okay, so abhi ye 2.5 which is less than 3 and I can accept this now by adding one beam. वो beam add करने का उधर, और ऐसे वो we can get rid of this height issues, and if it is say let's say 3.5 or something, okay, we can accept it without changing much things. Okay. नहीं, ये सर मेरे को बात समझ में नहीं आई, मतलब ये बीम बीच में, ये थोड़ा सा एक बार दोबारा बताओ ना. ये अगर ये मेरा 5 मीटर आ रहा है, ये मेरा केस है, आइडियल केस विच आई एक्सपेक्ट, तो देयर इज नो क्वेश्चन, और ये मेरा प्लिंथ लेवल है. अभी ये फुटिंग को क्या हुआ, मेरा बहुत ही नीचे गया है, हाउ मच, 5 मीटर्स नीचे गया है मेरे ग्राउंड लेवल से, यहाँ से. ये मेरा प्लिंथ लेवल है, प्लिंथ लेवल, ये मेरा प्लिंथ लेवल है, प्लिंथ. इसके नीचे 5 मीटर को मेरा हार्ड स्टार्टर लगा और आई एम पुटिंग द footing there. That means my column height is now 5 meters, and which is not accepted because it is varying too much than the given in the model. Model में 3 मीटर दिया और यहाँ तो 5 मीटर है, so it's becoming long column or it will have additional moments and due to the slenderness and this long column effect. अच्छा, बकलिंग रोकने के लिए एक बीम और डाल दी बीच में डालने का, so that इसका मेरा अभी ये height 2.5 हो गया. So this kind of adjustment we can, so we can take these decisions at that moment, and we can add some beams. तो ऐसे साइड पे करते हैं, अभी वो situation देख के we can take this kind of decisions. Or if you have that time and there is no much work you did, you can model this as a 5 meters in the ETABS. There is no issue. तो सर जैसे आप कह रहे हो 3 मीटर का मतलब 10%, आई मीन ऑलमोस्ट, मान लो चलो 10% भी है तो 300 mm का फर्क है, तो हम चलने देते हैं, कोई बात नहीं, तो वो तो ठीक है. पर ये कॉलम मान लो यहाँ पे है, इसका तो कोई चलता है. ये जो आपने कहा 5 मीटर नीचे चला गया, ये मान लो 3.3 मीटर नीचे गया है, 300 mm नीचे चला गया. अब ऊपर जो, अब इसमें हमने एक्स्ट्रा तो कुछ किया नहीं, चलने दिया, तो ऊपर तो फ्लोर्स का में तो स्लोप तो ज्यादा आ जाएगा ना, फिर वो बीम्स वगैरह वो सब तो उनमें वो साइड पे आएगा ना, वो साइड पे ये 300 नीचे दिखेगा, हार्ड स्टार्टअप रहेगा ना, कॉलम का हाइट थोड़ा बढ़ेगा ना 300 से, so there is no issue ना. It is not necessary that your all footing should be at same level ना, but it is necessary that your footing should rest on the hard rock. Whatever SBC, हाँ, वो SBC तुमने जो लिया है 350 का, वो उधर चाहिए, वहां वो रेस्ट होना चाहिए. That is hard rock we can say in our project for a simplicity. अच्छा, तो ये तो एग्जीक्यूशन फेज था, मतलब मैं एनालिसिस होने पे ड्राइंग सब जाती है, लास्ट में एक्सकेवेशन शुरू होता है. नहीं ड्राइंग्स नहीं, अभी इसके लिए क्या करते हैं, वी डोंट गिव ऑल द ड्राइंग्स एट द फर्स्ट मोमेंट. ये क्या करते हैं हम, ड्राइंग्स है ना पहले फाउंडेशन का देते हैं, दे स्टार्ट एक्सकेवेशन जनरली, मतलब, एंड देन वी कैन डू, और उसके बाद में कुछ चेंजेस हो गए तो वी कैन चेंज इट, एंड देन वी कैन गो फॉर द से स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स फॉर प्लिंथ एंड अबव लेवल्स. ये एक हो गई इंडियन कंडीशन. जनरली इंडियन कंडीशन ऐसे रहते हैं, हमारे यहाँ सब ड्राइंग्स एक साथ नहीं बनाते एज फार एज मीडियम स्केल प्रोजेक्ट्स आर कंसर्न. बट अभी बाहर के प्रोजेक्ट्स रहेंगे समझो, या बड़ा प्रोजेक्ट है either foreign countries or Indian big project, then generally tender निकलता है. So tender निकलने से पहले ना the structural drawings are supposed to be ready, because tender structural drawing के ऊपर टोटल सेट के ऊपर ही BOQ बनता है. तो उस टाइम वी हैव टू गो विद ये जो जियोटेक्निकल एक्सपर्ट ने जो दिया है लेवल्स, यही लेके करना पड़ता है. एंड बाद में क्या होता है, दिस स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स गोज ऑन टू द साइट, then after the excavation
they give the details to the structural engineer that these are the foundation strata which we are getting at this level, and structural engineer then checks कि अभी ये हमारा एक्सेप्टेबल लेवल पे है क्या, नहीं ये क्या. अगर ये 3 मीटर रहेगा तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन 5 मीटर आएगा तो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट विल हैव द क्वेश्चन इन हिज माइंड कि अभी ये एक्सेप्ट तो नहीं होगा. तो आई नीड टू चेक दिस कॉलम फॉर द डिजाइन. और ये कॉलम को डिजाइन चेक करने के बाद ही डेफिनेटली अगर ये 5 मीटर को सेटिस्फाई हो रहा होगा तो आई विल एक्सेप्ट इट. नहीं हो रहा होगा तो देन देयर आर टू चॉइसेस. आइदर आई विल चेंज द मॉडल and then I will redesign this column, or which is a very big deal because अगर मैंने total model change किया तो मेरा total ऊपर के level तक सब structure drawings already गए हैं. So it is a big task. Though generally this is the shortest and quick method that adds one beam in that, and that will get rid of. We will get rid of all these issues. ऐसे है. So ये choice ज़्यादा better रहता है always comparatively. अगर ये बड़ा प्रोजेक्ट का हमारे सब ड्राइंग्स ऑलरेडी गए होंगे, अगर नहीं गए होंगे फॉर मिड साइज प्रोजेक्ट्स, तो वी आफ्टर द एक्सकेवेशन वी गो फॉर अदर ड्राइंग्स. सो देयर इज अ फ्रीडम एंड चांस टू गो फॉर द रीमॉडलिंग. तो सर ये तो मतलब ठीक है, चलो इट्स गुड कि भी साथ साथ में काम चल रहा है और साथ में चेक भी हो रहा है, पर वो फिर वो स्टेप कहाँ आएगा बीच में जब उसमें हाई राइज कमेटी को वो हम अपनी ड्राइंग देते हैं, और वो तो आएगा ही नहीं फिर. नहीं मतलब नहीं, ये हाई राइज बिल्डिंग का कमेटी के बाद के इश्यूज है ये, बिकॉज दीज आर ऑन साइट इश्यूज, एंड ऑन साइट इश्यूज के पहले ही वो साइन होता है सब हाई राइज कमेटी का. तो डेटा तो चेंज हो गया ना, तो दोबारा देना पड़ेगा फिर. वो जनरली क्या होता है, जनरल रीचेकिंग या रीसबमिशन इज जनरली नॉट, बिकॉज सी यस इट्स क्या बोलते हैं, फाइनली स्ट्रक्चरल इंजीनियर टेक्स केयर ऑफ दिस ना, ही इज रिस्पॉन्सिबल. द हाई राइज कमिटी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज प्रोजेक्ट. अभी इतने साइकिल से तो उनका काम बढ़ेगा, इनका काम बढ़ेगा, तो प्रोजेक्ट से ज्यादा एफर्ट्स तो ये प्लानिंग और इसमें ही जाएगा ना. तो दे जनरली से यू टेक केयर ऑफ द साइट इश्यूज एंड whatever decision you take, because there are many decisions we take on the site till the completion of the project. So वहां बीच में कभी कभी एक बीम रहता है, वो निकलते यार ये बीम डालो इधर, कुछ तो ये डालो, आई वांट दिस एक्स्ट्रा लोडिंग, तो वहां वो लोकल डिसीजन लेने पड़ते हैं. सो हर टाइम वो सब डिजाइन या मॉडल चेंज करना पॉसिबल नहीं होता. सो दे मेनी टाइम्स व्हेन वी टेक द लोड्स, उस टाइम वो लोकल चेंजेस करते हैं हम. एंड लोकल चेंज मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर एक छोटा सा मैंने बीम सेकेंडरी डाल दिया कहाँ तो, या कहाँ तो एक लोकल लेवल पे मेरा थोड़ा सा लोड मैंने ये किया कुछ तो, या कुछ तो स्लैब ऐड कर दिया एक डक्ट में, समझो. तो सी हाई राइज बिल्डिंग कमिटी का सबसे बड़ा एम क्या है, दे आर लुकिंग एट द ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द बिल्डिंग. ओवरऑल आई एम टेकिंग. ओवरऑल मीन्स even though you do some smaller changes during the execution phase, these smaller changes should not affect the overall stability of the building. समझे? So overall stability should not be affected if you, and that is the responsibility of structural engineer, and they are not bothered about these smaller changes because they have already taken the holistic picture and overall stability. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है. तो कितना चेंज बड़ा कर रहे हैं हम उसमें, उसके ऊपर वो रहते हैं. जनरली द बिगर चेंज इज रियली नॉट एक्सेप्टेड, इसलिए प्लानिंग फेज में बहुत टाइम लेते हैं हम, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, देन कॉन्ट्रैक्टर्स, क्लाइंट्स, ऑल अदर टीम्स. बहुत बार क्या होता है बीच में एमईपी टीम, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लोग भी रहते हैं, ये बीच में बताते हैं मैंने अगर यहाँ शेयर वॉल दिया है समझो बिल्डिंग में, बीच में उसको याद आता है अरे जब साइट आती है ना तब बोलता अरे नहीं मुझे इधर एक होल चाहिए क्योंकि मेरा वो केबल्स जाने वाला है. हमने तो मॉडल करते समय तो पूरा किया है और अभी ये क्या होल बीच में डाल रहा है. वो बोलता है नहीं मुझे पॉसिबल ही नहीं जगह. मेनी टाइम्स दिस पीपल कोऑर्डिनेशन इश्यूज आते हैं हमारे स्ट्रक्चर्स के, एमईपी के, आर्किटेक्चर के. मेनी टाइम्स दिस मैकेनिकल पीपल आर नॉट अपॉइंटेड इन द प्लानिंग फेज. तो उस टाइम क्या होता है वो लास्ट मोमेंट पे साइट चालू होने के बाद बोलते हैं कि मुझे एक होल चाहिए इधर. तब वो अभी हम ये नाउ ही कम्स टू अस प्लीज प्रोवाइड दिस. फिर उस टाइम इफ आई प्रोवाइड दिस होल इन द शेयर वॉल, व्हाट इज द साइज ऑफ होल, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट वी टेक द डिसीजन कि अरे नहीं चलेगा ये समझो ये मेरा बहुत ही स्मॉल होल है समझो 1 फीट बाय 1 फीट या 300 mm by 300 mm. So at which location you want, definitely I will not allow this at the corner or somewhere. So जहाँ स्ट्रेस कम रहता है
तो वहां मैं होल दे सकता हूँ, वो भी ज्यादा बड़ा नहीं, वो बोलता है 500 बाय 500 का दे दो और 600 बाय 600 का दे दो, फिर वहां भी हम निगोशिएट करते हैं एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर, बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस होल एट ऑल। फिर भी वो फंक्शनल लेवल पे सर्विस डालने के लिए वहां तो लगेगा कुछ तो फिर वो निगोशिएट करके हम बोलते हैं नहीं नहीं 300 का दे सकता हूँ मैं, उससे ज्यादा नहीं। तो ये चालू रहते हैं मतलब दिस चेंजेस, बट इन टोटलिटी दे डोंट अफेक्ट मच टू द ओवरऑल स्टेबिलिटी। तो ये these are the things. ओके इसमें कॉस्ट वेरिएंस परसेंटेज कितना रहेगा सर? नहीं, see, this is very subjective question you are asking. Actually, I suppose you don't consider this factor till now, because ये variation आपने करने के बाद वो हो जाता है, and this is a very, let's say, experience part, and we are not much concerned about this because first we try to make sure that the structure is safe, and whatever the cost required for this safety at any moment, it is accepted. So we should not much bother about this. अभी ये कॉस्ट का इशू इनिशियली वो देख सकते हैं हम, इनिशियल प्लानिंग में थोड़े से ऑप्शंस निकल के, बट इसके बाद अगर साइट पे कुछ चेंज हो रहा है, सेफ्टी फर्स्ट, वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज, बिकॉज यहाँ कॉस्ट बढ़ेगा तो दैट वी डोंट नो, दैट इज देयर लुकआउट, बिकॉज वी आर मच मोर कंसर्न अबाउट दिस एंड नॉट अबाउट द कॉस्ट. In execution phase we can say if there are many changes, but in the planning phase definitely we see some cost issues and alternation options निकालते हैं हम, एक दो options, और वहाँ थोड़ा बहुत वो option निकाल के एक जो option 1 2 3 है तो उसमें का जो optimize option है, cost optimize, वो चूज करके आगे जाते हैं, और उसके बाद कुछ cost add हो रही है ना तो we should not bother much, क्योंकि हमारा पहला ऑप्शन जो है ओवरऑल ऑप्शन दैट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव, एंड वी आर चेंजिंग स्मॉल चेंजेस, एंड द स्मॉल चेंजेस में वेरी फ्रॉम 1% टू 5%, एंड अगर ये 5% चेंजेस हो रहे हैं और 5% कॉस्ट बढ़ रही है तो दिस इज अ मिस्टेक ऑफ प्लानिंग. सो प्लानिंग कुछ अच्छा हुआ नहीं है, एंड ड्यू टू दिस 5% इंक्रीज इन कॉस्ट इज देयर. ओके, इसका मतलब प्लानिंग के में गलती है, एंड देन क्लाइंट एंड ये सब कंसल्टेंट्स, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट, एमईपी कंसल्टेंट, दे नीड टू आंसर द क्लाइंट, ऐसे क्यों हुआ, व्हाई दिस कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, व्हाई यू हैवंट टेकन दिस इश्यूज इन द प्लानिंग फेज ओनली. सो वो फाइटिंग हो जाएगा और क्लाइंट विल नॉट बी हैप्पी बाय दिस काइंड ऑफ थिंग. अगर 1% 2% वेरिएशन रहेगा तो ये तो रहता है प्रोजेक्ट में कभी भी. So the people, say clients are always in a acceptance position of some variance in the cost. So 2 to 5% variation is always there in the any project, and it is already accounted in the planning and budget. So 2 to 5% is not a big deal. अगर उससे बहुत ज्यादा हो रहा होगा और बजट क्रॉस होने लगा तो भी क्लाइंट पिक्चर में आ जाता है. फॉर ही देन ही आस्क द पीपल दैट व्हाई दिस बजट इज एक्सीडिंग. तो ये सब थोड़े से सब्जेक्टिव मैटर्स है. एज फार एज स्ट्रक्चरल इंजीनियर इज कंसर्न, वी आर नॉट मच बॉदर्ड अबाउट दिस, बिकॉज वी आर बॉदर्ड अबाउट सेफ्टी, और सेफ्टी के लिए कुछ भी लगेगा तो क्लाइंट और कोई भी दुनिया का कोई कुछ नहीं बोल सकता, बिकॉज दिस इज फर्स्ट एंड कॉस्ट इज सेकेंड. तो दीज आर द कोर लॉग्स, डिफरेंट 11 कोर लॉग्स है यहाँ. तो ये सब कोर लॉग की शीट, उसका लेवल और वो सब दिया है उन्होंने. And whatever codes they have used for this soil SBC calculation and other things, whatever they are doing. See, this is one of the best book actually, Bowell's. So I think that formula you have used in SAFE, Bowell's formula. So actually Bowell's is a good book for geotechnical engineering. You should have this book actually with you, Bowell's book. So it's a good book. We are not much concerned about this, but Bowell is one of the best author and researcher in the geotechnical investigation and foundation analysis. So in case of doubts and discrepancies, generally people refer Bowell's formulas. So this is the core log equipment, and these are the core logs. I think you might have seen these core logs in your college or maybe in your projects.
Okay, these are the samples. So they mention which is the level of that sample. ये सैंपल कौन से लेवल पे है, तो हमें वी कैन गेट दैट जजमेंट कि कौन से टाइप का स्टार्टा उस लेवल पे है, एंड वी कैन डिसाइड कि हमारा स्टार्टा या फाउंडेशन इस लेवल पे और इस टाइप के रॉक में जाएगा. तो जजमेंट आता है व्हेन वी डू द एक्सकेवेशन बाय पोकलेन, वी कैन गेट कि ओके ये हार्ड स्टार्टा ऐसे आया, तो आई विल स्टॉप देयर. Okay, so this is with respect to the geotechnical investigation, and finally we are interested in the summary which I just started in the beginning. So what we want: SBC, I want depth of foundation, then foundation recommendation, then groundwater table. ये सबसे important है मेरा, और ये settlement. These are the only important aspects as far as our design is concerned. Now let's go into the heat-up modeling. Just a moment. Sir, two people are waiting to join. I'm not getting any. आ रहा है क्या, कहाँ दिख रहा है क्या मैसेज में? They No, are in sir, waiting in the group. WhatsApp, they have texted. रिफ्रेश कर लो सर इसको, मे बी दोबारा रिस्टार्ट होए तो. I think they have joined. Yeah. So yeah, now this is our model. Can anybody just tell me how to model the? So how do you start the model? Just to review the ETAP modeling process within 5 minutes. So if you want to do this model, our project model, what will you do, and what will be the process? 1, 2, 3, 4, 5, kind of this. So what will story data, grid data, material, section property, frame so you'll section. start with the grid, isn't it? We'll define one grid. Means when you start the project grid, then total number of grids we have, I think, drawn now. Have I shown it before to you? Yeah. So definitely when we start, we need grid data, and where we draw the grids through the columns and passing through the beam centers. So what we generally do, we do the. सर आपने कोई स्क्रीन शेयर की है क्या, बिकॉज यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा. नहीं. ओके, या अभी वो क्या हुआ, मैंने रिफ्रेश किया था ना, तो आई मिस्ड इट. Can you see this? Yes sir. Yeah. So when we do the GA or general alignment drawings, we prepare one layer in the AutoCAD where we have to draw the grids also. अभी ये grid दिख रहा है ना अभी. I will see this. So ये grid ऐसे बनाने का. Okay. Create these grids the way you want in the ETABS.
ये ड्रॉ लाइन करके सेंटर लाइन ए बी सी डी, तो यू विल सी कि ये मेरा ग्रिड बीम से के सेंटर से पास हो रहा है. ओके, देन ये बी ये सी नहीं क्या, और हॉरिजॉन्टली 1 2 3 4. अब यहाँ सर ये ये 9 नंबर तो किसी से बीम के सेंटर से नहीं है, मीनू बीच में से जा रहा नहीं, है. देयर मे बी सम आई थिंक सी समटाइम्स से अभी ड्रॉ करते समय एडिशनल ग्रिड आया होगा वो, और दिस मे बी हैविंग सम इशू एट द बेस लेवल आल्सो. जैसे कुछ होता नहीं कि हाँ ये ना शेयर वॉल के यहाँ जा रहा है, यहाँ क्यों नहीं दिख रहा, यहाँ है मेरे ख्याल से. इट इज पासिंग थ्रू शेयर वॉल दिस, ये मतलब लाइन, दिख ही नहीं रहा. हाँ सर. हाँ ये लाइन से है वो. और समटाइम्स क्या होता है, ये मेरे टिपिकल फ्लोर से फर्स्ट एंड सेकंड एंड टिपिकल फ्लोर्स, नीचे भी हमारा ये है ना पार्किंग लेआउट, तो वो बड़ा है ना उससे, ये कॉलम्स भी है मेरे. अभी यहाँ मेरा क्या है, ये 1 है 2 है और 3 है, एंड इफ यू गो इन टिपिकल फ्लोर्स ये 3 है, इसका मतलब यहाँ 2 ही को कुछ तो ग्रिड से यहाँ नीचे, एंड दे आर एट द पार्किंग लेवल. ओके, फॉर दिस कॉलम्स एंड शेयर वॉल्स. तो ऐसे ये बनाने का सब, तो सब ये सेंटर लाइन निकाल के ग्रिड बनाने का, सो दैट इट हेल्प्स अस इन मॉडलिंग वेरी इफेक्टिवली. क्योंकि क्या होता है मॉडलिंग में जब जाते हैं ना, तो हमारे पास क्या चाहिए, ये जीए और ये डीबीआर, ये 2 डॉक्यूमेंट्स लेके हम मॉडल बनाते हैं, बिकॉज दैट इज द बेसिस. और ये जीए का हमें डायमेंशन भी लगता है ये बिटवीन द 2 ग्रिड्स, क्योंकि वो एडिट करना पड़ता है हमें इसमें, राइट. तो अब टोटल हमारे कितने ग्रिड्स है यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 12, ये 12 एल सर, ग्रिड्स. एल हाँ नहीं सर, ऐसे ही कह रहा था. एल है तो एल का 12 होता है नंबर तो. हाँ, तो ये है ना 12 ग्रिड्स आए हमारे. या बट डोंट एज्यूम दीपक लाइक दिस, एल मतलब 12, अगर मेरा यहाँ मैंने डाला ही नहीं रहता तो इसको, तो ऐसे नॉट नेसेसरी. नहीं सर, कंटिन्यूअसली होंगे तो एल का अल्फाबेटिक हाँ नंबर लेकिन 12 ही होंगे होता तो दैट हैज टू बी वेरीफाइड, बिकॉज 1 2 ऐसे, दिस इज द वेरी सिंपल मेथड, गो बाय स्कूल सिंपल लाइक चाइल्ड. बिकॉज क्या होता है कभी कभी है ना, अभी ये काम हमारे ऑफिस में जूनियर्स भी करते हैं सीनियर्स भी करते हैं ना काम. इट में हैपन कि अभी उसने जी डाला ही नहीं उसमें, समझो, तो हाँ, यू विल ओके. एज्यूम कि ये 12 है और ये जी तो है ही नहीं उधर, तो हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो जाता है. सो इट इज ऑलवेज बेटर टू वेरीफाई इट एंड डोंट एज्यूम, क्योंकि गलतियां किसी से भी हो सकती है. ओके वेरिफिकेशन शुड बी द ऑलवेज प्रोसेस, चेकिंग एंड वेरिफिकेशन. क्योंकि सी प्रोजेक्ट में काम करते समय देयर आर मेनी पीपल हु वर्क ऑन द प्रोजेक्ट, एंड उस टाइम वो पीपल गलतियां करते हैं, और इसे ह्यूमन है, इसलिए वो गलतियां हो सकती है उससे, एरर्स या मिस्टेक्स. तो द ओनली चॉइस और चांस टू कैच द एरर्स और मिस्टेक्स इज बाय चेकिंग एंड वेरिफिकेशन, दैट इज द ओनली चॉइस. तो वो कैसे भी कुछ भी रहेगा ना, बेसिक बातें तो चेक करनी ही है. अभी ये भी मेजर करना है 1 2 3 4, ऐसे नहीं क्या. सो दिस वे वी कैन डू. अभी ये करने के बाद you prepare the grid, then you change the spacing of the grid by looking at the drawing. ये मेरा drawing है, स्लो क्यों हो रही. अभी दूसरी बात एक मैं बताता हूँ, when the models are bigger, तभी आपका मशीन भी ये चाहिए. Sir, in this model, have you modeled the parking entry portion, the sloped portion? Want to see in the ETAP modeling? हाँ, इसमें क्या है? यहाँ है. This is the drive area. Okay. Now, if you look at this building, you might have surprise. हमारा रैम किधर गया, isn't it? तो हमने जीए में ऑलरेडी डिसाइड किया था कि वी आर प्रोवाइडिंग वन एक्सपेंशन जॉइंट और अर्थक्वेक जॉइंट, एंड बाय दैट वी आर गोइंग टू सेपरेट दैट बिल्डिंग ऑफ दैट रैम्प. तो हमने रैम्प सेपरेट बिल्डिंग करके ये किया है. सो दिस इज आवर ओनली बिल्डिंग पोर्शन विच वी आर मॉडलिंग इन दिस, एंड रैम्प हैज टू बी मॉडल्ड सेपरेटली एज अ डिफरेंट इटैप मॉडल. करेक्ट. तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. ओके, सो आप भी है ना, हम ये करेंगे, रिव्यू करेंगे. सो वी विल प्रिपेयर द ग्रिड इन द AutoCAD एंड विल चेंज द स्पेसिंग एज पर द AutoCAD ड्राइंग इन ETABS. देन ग्रिड होने के बाद देन वी विल ड्रॉ द कॉलम्स फर्स्ट, rather we will define the material properties,
और मटेरियल प्रॉपर्टीज में हमारे प्रोजेक्ट में M40 है, सो अकॉर्डिंगली वी विल चेंज द प्रॉपर्टीज। क्या हुआ ये? देन we will define the section properties, frame sections, और वहां कॉलम्स और बीम के सेक्शंस डालेंगे। अभी ये दिस इज वेरी ट्रिकी पॉइंट कि अभी ये साइज क्या लेना है, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स रहेंगे तो यू विल बी इन क्वेश्चन कि अभी ये साइज कैसे लेने का। आई थिंक मैंने वो बेसिक कंसेप्ट का बताया था ना, कॉलम का कैसे साइज करने का, बेसिक साइजिंग ऑफ द कॉलम्स, ये बताया था क्या मैंने? हाँ, वो कस्टम साइज बताया आपने कि भी अगर वेरिएशन हो तो 25 का हाँ 75 का। हाँ, तो क्या करने का वो है ना, जनरली एरिया लोड मेथड से निकलते हैं एक्चुअली, इतने कॉलम पे कितना लोड जा रहा है। या हमारे पास कैसे रहता है, वी हैव द एक्सेल शीट, करेक्ट? एक्सेल शीट है ना हमारे पास, यस। तो उससे तो हमारे कैपेसिटी आ सकती है डिफरेंट कॉलम साइज की। सो अभी एक्सेल शीट मैंने बोला था ना, वो ऐसे प्रीलिमिनरी साइजिंग में यूज होता है। और ये कॉलम पे लोड कितना जाएगा मेरा, इतना एरिया का, करेक्ट? ये हाफ, ये बीम का हाफ, ये बीम का हाफ, ये बीम का हाफ, ये टोटल एरिया का जो लोड है ना मेरा, स्लैब का लोड, देन लाइव लोड, देन SIDL, एंड ये वॉल्स भी है ना इधर, ये वॉल भी है इधर, यहाँ वॉल आएगा, यहाँ एक वॉल आएगा, रहेगा तो हाँ, मतलब यू हैव टू चेक द ड्राइंग। तो ये टोटल लोड हमने निकालने के बाद इनटू नंबर ऑफ फ्लोर्स किया, तो इस कॉलम पे लोड आएगा अप्रोक्सीमेटली, इट्स नॉट एक्चुअल। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सर वो आपने पहले बताया था कि मतलब हर फ्लोर पे टोटल लोड निकालेंगे, फिर जितने जितने कॉलम है उन पे उसको डिवाइड कर देंगे उतने नंबर से, और अप्रोक्सीमेटली एक कॉलम पे उतना आ जाएगा। दैट आई अंडरस्टूड, बट ये अभी क्या कर रहे हो आप, एक ही कॉलम पे, आई मीन ये नहीं नहीं, ये एक फ्लोर है ना मेरा, इस पे ना ये टोटल ऐसे स्क्वायर ड्रॉ करने का, आधा इधर आधा इधर, बिकॉज दूसरा स्क्वायर जो है मेरा ये वाला, इसका लोड इस पे जा रहा है, समझ में आया? ये लोड तो ये कॉलम पे जा रहा है, बाद में ये स्क्वायर है मेरा। ये तो टोटल सर एक फ्लोर का टोटल लोड वैसे ही निकल जाएगा ना, पूरे स्लैब का सेल्फ वेट सब का टोटल मिला के, फिर उसको डिवाइड कर देंगे एक एक कॉलम पे, ऐसे नहीं क्यों नहीं कर? नहीं, वो नहीं, बिकॉज द एरिया ऑफ कंट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ये कॉलम पे मेरा कंट्रीब्यूशन इतना ही है ना, ये देखो, तो हर एक का कंट्रीब्यूशन अलग है। अगर ये देखा गया तो ये स्पेन बड़ा हो गया मेरा, तो इस कॉलम पे इससे ज्यादा लोड आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? सो इट इज या नॉट एग्जैक्टली द वे यू आर सेइंग कि टोटल लोड निकालो और फिर डिवाइड बाय करो, इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। अभी ये देखो, ये कॉलम, आई जस्ट डिलीट दिस। अगर इफ यू लुक एट दिस, लेट्स से दिस कॉलम, ओके, सो ये मेरे कॉलम का कैसे हो रहा है, ये मेरा, ये एरिया देखो, कंट्रीब्यूशन एरिया, दिस इज कंट्रीब्यूटिंग दिस मच ऑफ एरिया। अगर ये कॉलम देखा गया तो ये दिस इज कंट्रीब्यूटिंग ओनली स्मॉलर एरिया, इतना ही है। सो इफ यू लुक एट दिस, तो ये एरिया कम है ना, और इसका Yes. देखो ये एरिया ज्यादा है, सो दिस इज हैविंग मोर लोड देन दिस, तो वो फिलोसॉफी इज नॉट एप्लीकेबल हियर। सो इसको बोलते हैं एरिया लोड मेथड इन इंडिया, एंड यूके सिस्टम में बोलते हैं लोड टेक डाउन। तो ये ऐसे निकालते हैं हम, एरिया निकालने का और उसके ऊपर का SIDL, लाइव लोड, डेड लोड निकाल के एक फ्लोर का लोड निकालने का पहले, इनटू नंबर ऑफ फ्लोर्स, दैट विल बी द टोटल लोड ऑन द कॉलम फॉर ग्रेविटी पर्पस अप्रोक्सीमेटली। फिर बाद में उसको हम जनरली 25% या 30% बढ़ाते हैं, because we have not taken consideration the earthquake moments and rather column moments, तो 25-30% बढ़ाने का पहले ही, और वो जो लोड रहेगा उसको कॉलम डिजाइन करने का थ्रू एक्सेल सीट्स। मतलब ये सिर्फ शुरुआत के लिए है ना, ये कॉलम साइज जो फॉर है? मॉडलिंग में क्या साइज डालूं, क्योंकि अगर हमारा लास्ट टाइम 5 स्टोरी का बिल्डिंग, वो साइजेस छोटे थे, 230 बाय 450, 230 बाय 600 या 375, ऐसे छोटे साइज थे। अभी इतना 20 माले का बिल्डिंग रहेगा, 20-25 माले का, तो वो साइज तो कभी सेटिस्फाई हो गई नहीं ना। तो व्हेन यू स्टार्ट दिस, योर स्टार्टिंग विल बी वेरी लोअर। अभी ऐसे तो होगा ना, अभी 450 को अगर ये हाईरेज बिल्डिंग स्टार्ट किया साइज को, तो यू विल नॉट कम टू नो अभी ये कब कौन से साइज को होने वाला है। तो अप्रोक्सीमेशन इज ऑलवेज नेसेसरी, अदरवाइज तुम्हारे ट्रायल्स बहुत बढ़ जाएंगे। तुम्हारा ये कॉलम अराइव करने के लिए, इफ यू स्टार्ट विद दिस, इट में टेक मोर देन 10 to 20 साइकिल भी लग जाएंगे, क्योंकि कितना अभी आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, कितना आगे जाने का समझ में नहीं आएगा ना। अगर तुम्हें ये पता चला कि इसके ऊपर मेरा समझो
3000 किलो न्यूटन लोड आ रहा है, समझो, हाँ, लेट से, तो 3000 किलो न्यूटन को फिर एक्सेल में डाल के समझ में आता है, अरे नहीं ये 450 में तो बैठेगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, आई शुड एटलीस्ट गो फॉर 300 बाय 900, लेट से 900 या 1200 भी लगते हैं कभी कभी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में तो 12 से आराम से लगते हैं। तो फिर ये बेसिक नंबर आना चाहिए हमारे दिमाग में, तो ही हमारा साइज स्टार्टिंग यहां से हो जाएगा 300 बाय 900। अगर 450 से स्टार्ट किया तो वो कब होगा, बहुत बार इटरेशन करने पड़ेंगे। So for that, approximate analysis is very important. Approximate analysis is one of the key point for bigger size of projects, क्योंकि वहां पहले ये साइज अप्रोक्सीमेटली आना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली इट इज नॉट करेक्ट, करेक्ट वो बाद में करते हैं हम। तो बाय दिस एरिया मेथड वी से गेट दिस साइजेस कि क्या डालना है यहाँ। फिर साइज डालने के बाद लेट से मैंने एरिया अप्रोक्सीमेट मेथड से साइजेस कॉलम का निकल दिया और आगे चल रहा हूं मैं। सो आई डिफाइंड दोस साइजेस अप्रोक्सीमेटली। अभी कहाँ गए वो हमारे सेक्शन प्रॉपर्टी और फ्रेम सेक्शंस। अभी इसमें क्या है, इसमें बहुत कॉलम्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 10 15 कॉलम्स है समझो इसमें। अभी स्टार्टिंग को अप्रोक्सीमेट करने के बाद 10 15 नहीं डालने के, 1 2 3 डालने के, साइड यहाँ लोड के हिसाब से 2 4 डालने के। और बाद में ये 15 क्यों हो गए पता है क्या, कि ये मॉडल हमने एनालाइज किया, फिर डिजाइन किया आरसीडीसी में। आरसीडीसी में जाने के बाद आई फाउंड दैट देयर आर सम कॉलम्स व्हिच आर फेलिंग। तो जब फेल हो गए उसको फिर से मैंने रीडिजाइन कर दिया आरसीडीसी में। रीडिजाइन करने के बाद पास होने के बाद आई अगेन केम हियर एंड अगेन आई एडेड दैट कॉलम साइजेस हियर। जहां जहां फेल हो रहे उसका बढ़ा दिया साइज मैंने, और वैसे करते 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 आई केम टू दिस काइंड ऑफ नंबर्स ऑफ columns which are around 15. So I started with 4 sizes and finally I could finish with 15 sizes. तो ऐसे रहते हैं। ये एक्सक्यूज मी सर, वो एक बार कॉलम की लिस्ट अभी दोबारा निकालना सर, जो अभी दिखाया आपने। ये सर 1.5 मीटर का कॉलम बीच में, तो मेट्रो के पिलर होते हैं सर 1.5 मीटर के। तो हाँ, हाईराइज बिल्डिंग इज अ बिग प्रोजेक्ट, इसमें तो बड़े बड़े कॉलम्स रहते हैं 5 फीट का ना, इट्स नॉट अ बिग डील, इससे भी बड़े रहते हैं। देयर आर सम बिल्डिंग्स वो 1500 बाय 1500 के भी रहते हैं, 2 मीटर रहते हैं, 3 मीटर्स भी हो सकता है। हाईराइज बिल्डिंग के वो सब साइजेस अलग अलग रहते हैं। और उसके बाद में तो शेयर वॉल आता है। अभी ये हमारा शेयर वॉल का साइज बताए कि कितना है, हैव यू सीन दैट इन ऑटोकैड? सर कंप्लीट ड्राइंग इतनी डिटेल में स्टडी नहीं करी हम सर। ठीक है से अभी ये साइज तो बहुत ही बड़ा है। अरे क्या हो रहा है, अभी ये मॉडल है ना, so when we go for high-res model na, the software requirements are quite huge, huh? अभी ये मॉडल एक्चुअली ट्रेनिंग में बनाना तो जस्ट नॉट पॉसिबल ना, बिकॉज ये सिर्फ मिनिमाइज करने को इतना टाइम कर रहे हैं, तो बनाने को कितना करेगा। सो इट इज ऑलवेज द केस लाइक दिस। देखो ये अभी इट इज नाउ जनरेटिंग। तो व्हेन वी गो फॉर हायर प्रोजेक्ट्स, बिगर प्रोजेक्ट्स, वी शुड हैव द हायर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इसलिए ट्रेनिंग में हम बहुत बड़ा मॉडल नहीं ले सकते, बिकॉज देयर आर लिमिटेशंस। इट रिक्वायर्स वेरी हाई कॉन्फ़िगरेशन फॉर एवरीबडी। ठीक है, हम ई टैब में ही देखेंगे। लेट्स गो इन ई टैब्स। तो ये मेरा कितना है, बार, this is 3 meters. This shear wall is having length of 3 meters. So 3 meters मतलब 10 फीट। तो ऐसे बड़े बड़े साइजेस आते हैं, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है हाईरेज में। इसलिए क्या होता है, ये साइजिंग का जजमेंट आने के लिए थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस लगता है ऑफ स्मॉलर एंड मिड साइज प्रोजेक्ट्स। और ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन का मेथड बताया ना मैंने, उसका वो प्रैक्टिस करने के बाद में आरसीडीसी में वो 2-4 बार साइकिल्स करने के बाद वो साइजेस आते हैं हमारे। ओके, so we will do the approximate sizing for these columns and beam के लिए मैंने बताया था पहले कि you can go for, अगर 5 मीटर का रहेगा तो 500 mm लगेगा। और आई थिंक इन द फर्स्ट सेशंस आई टोल्ड यू कि 5-6 मीटर L/10 वगैरह लेते हैं ना हम डेप्थ, L/10 12/12। या तो L/10 L/12 वो स्मॉलर प्रोजेक्ट के लिए ठीक है, लेकिन इट डजंट अप्लाई फॉर बिगर प्रोजेक्ट्स। यहाँ बहुत बड़े लगते हैं साइजेस, क्योंकि when we do the just a moment
Hello. Yeah. So when we go, yeah, आवाज आ रहा है ना? For high-rise building, the sizes are huge for beams and columns due to heavy loads of gravity also, and that too also earthquake. Just wonder what is happening. Yeah. So generally sizes beam width are need to be taken at least 300 mm width, or it may be more than 300 mm, 375 mm also. So वैसे करना पड़ता है हमें. अभी I think these columns beams ये 300 by 600 का हमारा बीम लिया है हमने, क्योंकि 230 mm doesn't work. समझ में आया क्या? 230 mm is just not possible because उसमें स्टील कंजेशन हो जाता है. तो 300 mm बड़े बिल्डिंग्स में लगता ही है. तो नाउ लास्ट टाइम वी हैड अ डिस्कशन ऑन द कोड की कोड हमारा 300 बोल रहा है नए कोड, और ओल्ड कोड तो 230 बोल रहा है. तो वो डिस्कशन हमारा जो हुआ था ना, तो एक्चुअली दैट इज द रीजन, क्योंकि हाई रेज बिल्डिंग में हम जब डिजाइन करने जाते हैं तो स्टील रिक्वायरमेंट इज वेरी हाई, एंड ड्यू टू दैट देयर इज अ कंजेशन ऑफ स्टील इफ वी प्रोवाइड ओनली 230 mm साइज थिकनेस ऑफ बीम. तो उस टाइम 300 तो लगता ही है मिनिमम. तो जनरली बाय डिफॉल्ट वी गो फॉर 300, and that is why the actually code has also stipulated certain sizes in the new code. Okay, for the time being we are referring this code, old code only for earthquake design, but we will discuss on the new code also in between that, because it is in transition zone, and we will discuss also that. But the 300 size is as per new code. We have taken that here. Now then what we do, then we go and here other things, you know. Now we will go at the base. अभी base पे हम supports देते हैं. ये तो supporting condition दिया है हमने, और if you let's say see the elevation important है. 4 1, let's go in 1. Now यहाँ देखो, यहाँ हमारा पेरीफेरी पे रिटेनिंग वॉल है. सो वी हैव मॉडल द रिटेनिंग वॉल आल्सो इन आवर प्रोजेक्ट. और ये जो है ना हमारा, ये प्लिंथ लेवल है और ये बेसमेंट लेवल है, एंड दिस इज 3.3 meters, बट our hard strata is at 4.5 meters. So 1.5 meter हम नीचे भी जा रहे हैं यहाँ, 1.2 meters समथिंग. तो यहाँ हमारा आइसोलेटेड फाउंडेशन रहेगा, राइट. यू विल सी रिटेनिंग वॉल एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक चाहिए, बट हमारा ये फाउंडेशन भी नीचे जा रहा है, इसलिए वी आर टेकिंग द रिटेनिंग वॉल टिल द बॉटम ऑफ द फाउंडेशन, मतलब फाउंडेशन के लेवल तक. तो इफ यू लुक एट दिस, you will see now this is the retaining wall over here. This is at basement level, and even at the plinth level also you will see the retaining wall. समझ में आ रहा है ना ये? सर इतना, ये इतने माले की ये ऑलमोस्ट इतना लोड इस पे आएगा हर कॉलम पे, तो उनकी कॉलम का खुद का साइज इतना बड़ा है. आइसोलेटेड फुटिंग देंगे तो फुटिंग का साइज भी इतना बड़ा होगा, तो आइसोलेटेड क्यों दे रहे हैं? मर्ज तो होनी है नीचे जाके, तो राफ्ट क्यों नहीं दे रहे? हाँ ना, मर्ज होने के बाद फिर वो देखने का ना डिसीजन, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है ना. सो आई विल चेक इट, कैन आई मेक इट आइसोलेटेड. इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन गो फॉर combined foundation, and then still it is not possible, then go for raft foundation. तो ये sequential है. पॉसिबिलिटी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ एंड करने का, ये हमें लोड निकलने के बाद ही पता चलेगा ना. When you design it in the, let's say, go in the RCDC, and if you find that lot of footings are getting combined, then go in the safe and do it combined foundation. If it is not, say, and already हमारा राफ्ट यहाँ है, don't forget कि हमारा बेसमेंट लेवल पे एक राफ्ट है, because it is a requirement for the parking. अभी नीचे जा रहे हैं because हार्ड स्टार्टा नहीं था इसलिए.
और एक बात ऐसे भी कर सकते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये कॉस्टिंग बचाना होगा, तो आई डोंट नो बट दैट कंसल्टेंट आर्किटेक्ट हैज नॉट टेकन दिस पॉइंट। दे कुड हैव डन कि ये मेरा डायरेक्ट राफ्ट यहाँ ही ले सकते थे, यहाँ इंस्टेड ऑफ हैविंग आइसोलेटेड फाउंडेशन एंड राफ्ट फाउंडेशन ओवर हियर। बट ये कैसे होता है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन दिस स्कीम, क्लाइंट है, आर्किटेक्ट्स है, उनके हिसाब से करना पड़ता है। अगर मैं क्लाइंट रहता तो आई वुड हैव टोल्ड देम कि वो डेप्थ बढ़ा दो उसका पार्किंग का, मुझे यहाँ राफ्ट डाल दो, so that my isolated footing का कॉस्ट तो थोड़ा बचेगा मेरा ऐसे। So this kind of things are always there, but as a designer start with isolated, अगर combined होगा तो combined करो, और combined भी नहीं होगा तो फिर go for raft, ऐसे ही रहते सीक्वेंस। बाद में ये हमारा देन प्लिंथ लेवल है, उसके बाद में ये फर्स्ट पार्किंग लेवल, देन पोडियम पार्किंग लेवल, ये फर्स्ट फ्लोर्स वगैरह है। तो ये सेक्शन तो यू आर, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड यू नो एडिट स्टोरी में, इफ यू गो हियर इन एडिट स्टोरी, यहाँ यू नो दिस सिमिलर स्टोरी वगैरह यूज कर सकते। तो बड़े प्रोजेक्ट में सिमिलर स्टोरी का बहुत यूज है, जो जो टिपिकल फ्लोर्स है उसको सिमिलर बनाने का, एंड यू हैव लर्न दिस इन दिस द प्रीवियस ट्रेनिंग्स। सो उसके हिसाब से ये बना दिया है, वो कुछ नहीं है। सो एज फार एज द मॉडलिंग बेसिक पार्ट इज कंसर्न, देयर इज नो एज अ स्पेशल थिंग, बिकॉज इफ यू कैन डू द मॉडलिंग ऑफ 5 story, you can do the modeling of high-rise building also. Only there are certain things which are important is the structural engineering aspects, क्योंकि अभी इतना बड़ा बिल्डिंग होगा तो कॉलम के साइजेस क्या साइज लेना चाहिए, तो वहां से हमारा इंजीनियरिंग स्टार्ट होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि इसके बाद में हमारा ज्यादा इंजीनियरिंग स्टार्ट होने वाला है, बिकॉज नाउ वी विल नॉट मच गिव फोकस आउट टू द मॉडलिंग एंड सॉफ्टवेयर, बिकॉज सॉफ्टवेयर इज अ मशीन like calculator, and once we know how to model the things, it is not a big deal, क्योंकि वो तो मशीन है and we are going to operate it। अभी इसके बाद में जो स्टार्ट हो जाएगा वो इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, वहां जिसमें हम एज ए इंजीनियर कम्स इनटू द पिक्चर। मॉडलिंग के लिए ऑपरेटर कोई भी चलेगा, अगर मैंने किसी ड्राफ्ट्समैन को भी दिया ना मॉडल करने को, ही विल डू द मॉडलिंग, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं। बट उसको ये नहीं समझ में आया कि साइज कहाँ डालने का है, कहाँ रिटेनिंग वॉल डालना है, कितना बीम साइज एज्यूम करूँ, तो वो तो इंजीनियर ही बताएगा। दैट टू डिपेंड ऑन इट्स बेसिक कंसेप्ट, उसका नॉलेज क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, उसके ऊपर ही रहते हैं वो सब। तो इसके बाद में ट्राई टू थिंक मोर इन द इंजीनियरिंग एस्पेक्ट, इसलिए ये प्रोजेक्ट में मैं मॉडल सिखाने नहीं वाला, बट उसमें इंजीनियरिंग एस्पेक्ट जो इंपॉर्टेंट है दैट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, वो इंपॉर्टेंट है इसमें। तो वो मॉडल करो, देन ड्रॉ द बीम्स एज पर द साइजेस, एज्यूम साइजेस। अभी 300 by 600 लिया है हमने, क्योंकि जनरली 300 by 230 by 450 एज पर 5 story बिल्डिंग एजम्पशन ये हो सकता है, बट हाईरेज में क्या करने का, अगर 5 मीटर को रहेगा तो गो फॉर 600, क्योंकि क्या है अर्थक्वेक के मोमेंट्स भी आते हैं ना उसमें। तो इसलिए थोड़ा जैसे तुम्हारा जजमेंट वो 5 story बिल्डिंग के लिए 230 by 450 था, तो इस यहाँ 300 by 600 से स्टार्ट करने का फॉर द सेम स्पैन ऑफ द बीम। तो अभी मैंने बोला था ना कि देर इज नो फिक्स रूल फॉर, देर इज नो थंब रूल, देर इज नो फिक्स रूल व्हाइल एज्यूमिंग द साइजेस, बिकॉज ऐसे कभी होता नहीं, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, कंडीशन टू कंडीशन, लोड टू लोड, इट रिफर्स। अभी यही 5 मीटर स्पैन को मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि 6 मीटर 600 ले लो डेप्थ और 300 वाइड ले लो, एंड वहां मैंने जब बताया फॉर 5 story बिल्डिंग, आई टोल्ड दैट यू टेक 230 by 450 बीम, क्योंकि उसका ज्यादा अर्थक्वेक लोड उस टाइम नहीं आएगा, ज्यादा अदर लोड्स भी नहीं आते उसमें, इसकी वजह से दैट इज ओके एट दैट मोमेंट। अभी यहाँ वो अलग रहते हैं, इसलिए जनरली हाईराइज बिल्डिंग में साइजेस ऑफ बीम्स एंड साइज ऑफ कॉलम्स आर वेरी ह्यूज। सो इसलिए वो 5 story बिल्डिंग का अजम्पशन आपका जो था उस टाइम, वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। इसीलिए जितना आप प्रैक्टिस करोगे अलग अलग प्रोजेक्ट टाइप्स पे, वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि वो कैसे डिफर होता है, और आपका इंजीनियरिंग जजमेंट बढ़ते जाएगा, एंड दैट इंजीनियरिंग जजमेंट इज द ओनली की कि वो कहाँ क्या लेना है। इसलिए थंब रूल तो कुछ है ही नहीं इसमें, लेकिन अभी मैंने एक सेकंड थंब रूल बताया आपको कि अगर ऐसी बिल्डिंग रहेगी तो वहां 450 था तो यहाँ 600 ले लो, और कोई बड़ा रहेगा बिल्डिंग और थोड़ा बड़ा स्पैन रहेगा तो 750 ले लो। तो
डिफर्स। अभी ये ज्यादा नहीं सोचने का कि यार क्या अलग अलग इतना कॉम्प्लेक्स है तो फिर क्या करने का। सी इट्स अ प्रोसेस, यू डू मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स, मैक्सिमम प्रैक्टिस, ऑटोमेटिकली दैट जजमेंट विल डेवलप। सो दीज आर द, अभी ये हमारा टिपिकल मॉडल है और यू नो दिस, ये ओपनिंग किया है, यहाँ शेयर वॉल है हमारे मॉडल की है, लिफ्ट वॉल, यहाँ एक शेयर वॉल है, ये दो, यहाँ एक ऐसे है, यहाँ एक, ओके। देन द लोडिंग्स विल गो, फंक्शन ये हमारा तो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम हमारा इंडियन कोड का लिया है। देन वी हैव टेकन लोड पैटर्न्स में गए तो आपको पता है ये सब, डेड लोड ऐसा है, SIDL है, और ये लोड किया है हमने अर्थक्वेक में। हमारा जो DBR है उसके हिसाब से हमने ये 15th फ्लोर पे लिया है हमने टॉप स्टोरी, और यहाँ है ना प्लिंथ लेवल लिया है, समझ में है ना। लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था ये कि हमारा H निकालते समय हमने प्लिंथ लेवल लिया है और बेस नहीं लिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। हमने जब 5 स्टोरी बिल्डिंग लिया था ना, ओल्ड वाला मॉडल, तो उस टाइम कहाँ लिया था हमने H? फ्रॉम द बेस, करेक्ट। अभी यहाँ हम प्लिंथ से ले रहे हैं बिकॉज ये रिटेनिंग वॉल की वजह से, वो स्टिफनेस की वजह से बिल्डिंग डिफ्लेक्ट्स फ्रॉम हियर मच, तो यहाँ का स्टिफ होने की वजह से वो डिफ्लेक्शन ज्यादा नहीं होता, इसकी वजह से तो वो टाइम पीरियड के लिए कंट्रीब्यूशन एक्चुअली ये हाइट का ज्यादा हो जाता है यहाँ से आगे, इसलिए प्लिंथ ले रहे हैं हम फॉर defining this earthquake definitions, plinth to 15th floor, because this is required for calculation of the time period. Anyways, we are calculating the time period in our DBR directly, so वो ही डाल रहे हैं हम, बट यहाँ डालते समय we should be careful कि क्या H लेना है। बाकी तो factors, इससे फर्क क्या पड़ेगा, क्योंकि टाइम पीरियड तो हमने कैलकुलेट करके डाला है मैन्युअली। हाँ, बट वहां भी डालते समय मैंने यहाँ से यहाँ ये हाइट लिया है। अगर मैंने उसको बोला ना प्रोग्राम कैलकुलेटेड, तो ये वो यहाँ से लेता है वो हाइट, ये इनपुट से, समझ में आया क्या? नहीं दैट इज ओके, बट अगर हमने ये मैनुअल यहाँ वैल्यू डाली है हाँ तो नहीं तो फर्क यहाँ पे क्या डालूं, तो कुछ भी कोई मीनिंग नहीं है। ऐसे नहीं होगा, मीनिंग नहीं, बट ओके एक्चुअली फॉर दिस यहाँ ये सिग्निफिकेंस है उसका मेजर। नहीं आई मीन कोई फर्क पड़ेगा तो ठीक, नहीं तो नहीं पड़ेगा, बट क्या कर रहता है, ट्राई टू हैव द, आपका जो एजम्पशन है उसके हिसाब से वो आना चाहिए। क्या होता है बहुत बार ये टी गलत हो गए तो सम पर्सन विल से कि जाने दो, मैंने कैलकुलेट करूंगा हाथ से, लेट हिम कैलकुलेट, और यहाँ क्लिक किया और ये भूल गया, तो फिर वो हो सकता है। इट इज ऑलवेज बेटर कि ज्यादा से ज्यादा ये करो, जैसे होना चाहिए वैसे ही डालना चाहिए, अगर यूज करना होगा तो भी और यूज करना नहीं होगा तो भी, बिकॉज क्या है कब कौन कैसे गलती करेगा नोबडी नोज, क्योंकि लास्ट मोमेंट में प्रोजेक्ट में क्या रहता है, देयर आर वेरी रश आवर्स, तो उस टाइम में ऐसे गलतियां फिर में लीड टू ब्लंडर्स, बेटर टू हैव द बेटर प्रैक्टिस। बाद में विंड लोड, एज आई सेड, तो ये तो आपको पता है, ये 0.8 और 0.5 लेना है, ये सब एज पर द कोड क्लास। यहाँ भी ये किया हमने सर। इसमें विंड लोड के CPC में मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि सर ने जो गणेश वयाल सर ने जो विंड लोड का लेक्चर लिया था, उसमें सर ने CPC का या जो भी उन्होंने बताया, ही सेड कि उन्होंने वो कौन सी तारानाथ की बुक से आई मीन कंसल्ट करके लिया, बट एक्चुअली तारानाथ फॉलोज द NBCC कैनेडियन कोड एंड तो कैसे आप विंड लोड कौन सा भी रहने दो, सबसे इम्पोर्टेंट है ना उसका फैक्टर कितना आएगा इसका प्लस करने के बाद, इट इज अराउंड 1.3, आई थिंक ये बताया था ना ऑलरेडी, इट वाज देयर ना, DBR में था ही ना हमारे, आई थिंक, तो वही मेथोडोलॉजी हम यूज कर रहे हैं ना, कुछ ये CPA ये माइनस और प्लस ना, तो 1.3 फैक्टर आ जाता है। एक्चुअली लिटिल कंजर्वेटिव अप्रोच है हमारा ये, थोड़ा सा ज्यादा आता है एज पर द हमारा जो कोड बताता है ना, उससे थोड़ा पॉइंट ज्यादा आता है, ज्यादा नहीं बट थोड़ा। बट क्या किया है IS क्या बोलते, ETAB ने ऑलरेडी
उसी फॉर्मेट में दी है, उसी फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट किया है, which is little on the higher side than our code. If you do go by this method, as per our code exactly, and if you go by the CP minus CPI, the little value, there is a little change, but that little change is on the higher side if you go with the ETAP methods. इसलिए ये लेते हैं हम एक्चुअली. उसमें था, उन्होंने DBR लिया था ना, उसमें all details थे. You can go through that again, and if you have the specific question on that, we can discuss on that. Okay. कोड से सर मैंने कोड से समझने की कोशिश की सीपी की वैल्यू की, जैसे नहीं, वो इधर कोड में और ये इसका डायरेक्टली ये नहीं है रिलेशंस. अगर इसको एग्जैक्टली कोड में ढूंढते जाओगे ना, तो इट विल नॉट फाइंड. कुछ नहीं समझ में आया सर. नहीं, 21 वो you will पेज not तो find सिर्फ it, सीपी पर है. बट इसका टोटल समेशन कितना आता है? 1.3 आता है. और कोड का अगर तुमने गए अलग अलग मेथड से उन्होंने दिए हुए, तो दिस वैल्यू विल बी लेस देन. कोड में से लिया तो थोड़ा कम रहेगा, इसलिए हम पहले तो इसने ऑलरेडी यही फॉर्मेट में दी है, सो देयर इज नो अदर चॉइस, बट दिस चॉइस इज द वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड चॉइस. एंड एज वी नो कि हमारे कोड बाद में चेंज हो जाते हैं, तो इट इज बेटर टू गो विद दिस चॉइस. इसका 2 रीजन है. एक तो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है और ईटैब में भी यही दिया है, और दूसरा ये जो नंबर है ये हमारे कोड से थोड़ा ज्यादा आ रहा है, तो इट इज ओके ना, थोड़ा हायर पे जा रहे हैं, इसलिए हम ये मेथड पे जा रहे हैं. सो इट इज बेटर कि हमारा इंडियन कोड है वो बाजू रखा तो भी चलेगा, क्योंकि चॉइस भी नहीं है ज्यादा डिफाइंड. और अगर चॉइस लिया भी मैंने ये, तो ऐसे क्या मैंने ये करने वाला है? अगर मेरा 5% से अगर वेरिएशन है, दैट टू ऑन द लोअर साइड, इससे अच्छा है कि 5% थोड़ा बढ़ा के ये अप्रोच लेके जस्ट गो अहेड. ऐसे डिसीजन लेते हैं हम, क्योंकि देयर इज नो ऑलवेज एग्जैक्ट सॉल्यूशन. क्योंकि क्या होता है, बहुत बार ये ETAP सॉफ्टवेयर गोज ऑन say changing their softwares and upgrading their codes of different countries. लेकिन हमारा इंडिया का कोड तो बहुत ही पीछे रहता है, तो उस टाइम क्या होता है, उनको भी प्रोग्रामिंग के लिए भी ये होता है, तो उस टाइम वो दे फाइंड द गोल्डन मीन. एग्जैक्टली सभी कोड को एक साथ एक ही सॉफ्टवेयर में डालना एज पर देयर वेरिएशन ऑफ assumptions इज वेरी डिफिकल्ट इवन फॉर द सॉफ्टवेयर पीपल. तो वो दे फाइंड सम गोल्डन मीन इन दैट, और वो गोल्डन मीन ये था कि they have found only these 2 values and that's it. और 1.3 आएगा ना, ये दोनों का सम, which is okay, good conservative number and just accepted number है. ऐसे कुछ ये है नहीं उसमें. तो this way the people take the decisions and go ahead. ऐसे कुछ पिन पॉइंटेड कुछ ही नहीं रहता कहाँ भी. You will find always loopholes, gaps, variations in structural engineering at every level, that to start from the architectural drawing to DBR to codes, codal assumptions, codal preparations, your analysis, your software. अगर ये तुमने स्टैड में किया तो वो उसमें और अलग कुछ तो रिजल्ट आने वाले. They will never match with the ETABs. Still we accept some results as long as they are within 10% variations. बाद में हम डिजाइन कर रहे हैं, उसके assumption अलग है. बाद में ये लोडिंग डाल रहे हैं विंड के, अर्थक्वेक के, उसमें assumption अलग है, उसमें वेरिएशंस है. सो इट्स वेरी अप्रोक्सीमेट साइंस है हमारा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग. तो सिर्फ वो अंडरस्टैंड करने का, ट्राई करने का और एक्सेप्टेबल लेवल पे लाने का, एंड जस्ट टेक द डिसीजन एंड गो अहेड. ऐसे ही रहते हैं स्ट्रक्चर्स में. वी हैव टू टेक डिसीजंस व्हिच आर एक्सेप्टेड एंड व्हिच आर सेफर. And this goes on practicing and getting the experience, doing many projects, doing many practice, you will get that judgment. And that is the way. अभी ये लोड हो गया हमारा, then लोड केसेस. ये स्केल फैक्टर कैसे डालने का आपको पता है, वो रेशियो निकल के हम करते. पहले वो डिजाइन ये पता है ना, आई थिंक स्टैटिक Yes. बेशियर निकालते, ये सब आई थिंक 1000 या 9850 से लेते हैं हम. स्टार्ट करते हैं कुछ नंबर से बेसिक, आइदर 1000 और वो बाय डिफॉल्ट एक नंबर रहता है 9.81 का, 9850. सो वो लेके वी कैन स्टार्ट एंड देन चेक द बेशियर और रिस्पॉन्स करो, उसका रेशियो निकाल के वो फैक्टर आ जाता है. तो उसके हिसाब से ये भी बनाए यहाँ. बाकी तो बेसिक लोड को केसेस आपको पता है. विंड में भी ऑलरेडी वी हैव जस्ट गॉन थ्रू दैट.
एंड देन लोड कॉम्बिनेशंस, अभी क्या है, डिफॉल्ट कॉम्बिनेशन डाल दिया ना हमने, तो वो कुछ डिकॉन 1 2 3 आता है, समझ में आया ना? तो मेनी Yes, टाइम्स वी decon डोंट अंडरस्टैंड यार ये डिकॉन क्या है, मतलब इसलिए हमने क्या किया, उसको रीनेम किया है 0.9 DL प्लस 0.9 SIDL। अगर आपने इसको मॉडिफाई करने के बाद है ना, दिस नेम वी कैन चेंज, डिकॉन 1 2 वगैरह। इसलिए हमने क्या किया, डिफॉल्ट नहीं लिया हमने, वी हैव क्रिएटेड दिस। समझ में आया क्या? डिफॉल्ट भी ले सकते हैं, वैसे कुछ नहीं, वो भी सही रहता है, बट वो ढूंढने के लिए बहुत बार तकलीफ हो जाती है, अरे कौन सा कॉम्बिनेशन है। अगर यहाँ कुछ तो डिकॉन 13 है, तो आई हैव टू क्लिक लाइक दिस, फिर यहाँ आता है, समझ में आ रहा है ना कि 0.9 DL ये दिख रहा है ना नीचे। यस सर होवर करना पड़ता है तब दिखता वो है, ये देखना डायरेक्ट दिख पड़ता है, और जाएगा। बाद में फिर हमें क्या होता है, जब रिजल्ट्स आते हैं ना, तब वो बहुत बार तकलीफ हो जाती है, अरे कौन सी कॉम्बिनेशन को गवर्न हो रही है, तो वहां जाना पड़ता है। फिर अभी यहाँ मुझे लगा कि ये बेंडिंग मोमेंट ज्यादा आ रहा है डिकॉन 13 को, अभी दिमाग में नहीं आता डिकॉन 13 कौन है, फिर हमें यहाँ जाना पड़ता है, देन वी गो देयर, देन वी चेक हियर, एंड देन क्लिक करने के बाद अरे हाँ ये है क्या। अब ये बहुत बार करना पड़ता है, इसलिए बेटर टू गिव द नेम डायरेक्टली एज वी वांट। So DBR, and this matches with our DBR also। तो DBR में जो हमने बताए थे ना, वहां भी आसान जाता है ना DBR रेफर करने को, तो वो डॉक्यूमेंटेशन अगर थोड़ा इफेक्टिव रहेगा तो वो आसान हो जाती है सभी बातें। So try to keep the documentation as possibly accurate and similar as, because वो बाद में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं तो अरे ये कहाँ का है वो कहाँ का है। अभी यहाँ भी देखो, जो नाम यहाँ दिए है वैसे नाम वहां दिए है। It's very easy ना to compare the DBR also and so on। इसलिए ऐसे वो कॉम्बिनेशन बनाते समय you have these choices। Yes, it takes time because इतने कॉम्बिनेशन डालने मतलब इट्स बिग डील। लेकिन आपको पता है कि ये सब एक बार एक प्रोजेक्ट होने के बाद वी कैन रीयूज दिस, ये पता है क्या आपको? कॉपी बना के, ऐसा ऐसा सबने कॉपी बताया कॉपी था। बना के कर सकते हैं, या ऐसे क्या करते हैं, फाइल जब हम ओपन करते हैं ना, नॉट ओपन, न्यू फाइल करते हैं, पता है ना, ऐसे समझो। तो अभी मैं यहाँ नहीं करूंगा क्योंकि उसको टाइम लगता है ओपन होने को। तो वो बोलता है कि चूज ईडीबी, पता है क्या, वो एक मैसेज आता है चूज ईडीबी। चूज ईडीबी मतलब जो प्रोजेक्ट का फाइल आपने ऑलरेडी बनाया है ना, उसका फाइल ओपन करने का। वो ओपन करने के बाद उसमें जो जो प्रॉपर्टीज आए ना, बीम साइजेस, ये वो कॉम्बिनेशन लोड केसेस, सब वो लेता है उसमें कॉपी करके। दैट इज ऑल्सो वन चॉइस। एंड सेकेंड चॉइस एज यू सेड, यही करो, सेव एज करो, और ये सब ग्रिड वगैरह डिलीट कर डालो ये सब प्रोजेक्ट के। पर ये ग्रिड, उसमें, सॉरी सर मैं या इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट उसमें जो आपका तरीका है उसके अंदर क्या मॉडल आएगा या फिर खाली सेटिंग्स मॉडल आएंगे? नहीं आता, वो सिर्फ उसके प्रॉपर्टीज आ जाते हैं सब, दैट्स बेटर। ग्रिड उसका ही आता है। हाँ, और जो नहीं आता आपको लगेगा कि ये यूज करूंगा तो ऐसे भी यूज कर सके, योर चॉइस। लेकिन इसमें ज्यादा एडिट करना पड़ेगा, ये फिर स्टोरी भी सब डिलीट करने पड़ेंगे आपको यहाँ से, क्योंकि स्टोरी भी है ना 20, ये सब डिलीट करने पड़ते हैं सिलेक्ट करके। इससे अच्छा है कि वो ईडीबी करो, बट यू हैव टू चॉइसेस, दैट इज योर कॉल कि क्या इफेक्टिव है, ट्रायल करने का और चूज करने का। एंड मेनी टाइम्स क्या होता है, मैं कुछ बताता हूँ यहाँ as a trainer, and as we take the decision in our projects, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा मेथड ही करेक्ट है। so you have to try also on your side because your experience matters most than my experience, because आपका एक्सपीरियंस आपके करियर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है than my experience only as a training। तो I would suggest कि do trials, एंड देन आफ्टर ट्रायल यू विल हैव अ गुड चॉइस कि अरे ये इतने मैंने 3-4 ऑप्शन बनाए लेकिन ये मुझे अच्छा लग रहा है, गो विद दैट, डजंट मैटर। सो नाउ कॉम्बिनेशंस और ये सब हुआ है, एंड सो दिस इज इट विद द, ये अभी मैं सिर्फ यहाँ है ना, ये वॉल पे है ना, यहाँ लोड, आई चेक इट आउट। थोड़ा ये लोडिंग का मैं बताता हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी है। अभी यहाँ ये ओपन नहीं होगा ना।
इस पे लोड कैसे डालते हैं वो मुझे बताना है एक्चुअली। वो डीपीआर में पहले बोला था ना मैं। अभी रिटेनिंग वॉल पे लोड कैसे आता है? लेटरल लोड है, बैक साइड्स, पैसिव एंड या एक्टिव। या तो सॉइल का लोड आएगा बाहर से। ये आपको पता है ना कि नहीं पता है? अभी ये हमारा जो मॉडल है ना, यहाँ मैं सेक्शन में दिखाता हूँ। ये वॉल यहाँ है मेरा, ऐसे करेक्ट। ये एक वॉल है, ऐसे भी वॉल है ना मेरी। तो यहाँ एक वॉल है मेरा। सो देयर इज वन वॉल ओवर हियर, राइट? इजंट इट? सेक्शन में बोल रहा हूँ, ये सामने वाला वॉल नहीं बोल रहा। ये जो ऐसे जा रहा है, दिस वॉल, करेक्ट? इनसाइड। या ये मेरा अभी ये एलिवेशन दिख रहा है यहाँ का, ये वॉल का एलिवेशन दिख रहा है रेड कलर, और यहाँ मैंने जो निकाला ना मैजेंटा कलर में, तो ये वॉल है मेरा। अभी ये मेरा ग्राउंड लेवल है, प्लिंथ है ना, लेट्स से दिस इज माय ग्राउंड लेवल। इससे थोड़ा नीचे, बट लेट्स से हायर। ये अभी ये सॉइल यहाँ है मेरे पास। सो ये सॉइल का लोड मेरा कैसे जाएगा यहाँ? वी नो दैट एनी सॉइल लोड इज अ ट्रायंगुलर लोड, करेक्ट? ऐसे रहता है ना हमारा लोड। तो दिस इज माय सॉइल, सॉइल की वजह से इस पे लोड जाएगा। ये सॉइल लोड का बेस प्रेशर कितना रहता है? ये जो ऑर्डिनेट है, ये कितना रहेगा हमारा? के ए गैमा एच, गैमा फॉर सॉइल, करेक्ट? तो ये मेरा हाइट रहेगा ऐसे, और ये मेरा एच है, करेक्ट? अभी यहाँ मेरा दो लेवल है, ये बेसमेंट भी है, यहाँ ये है। सो बेसमेंट लेवल पे ये ऑर्डिनेट रहेगा मेरा। ये टॉप को तो जीरो रहता है प्रेशर, और बॉटम को सबसे ज्यादा रहता है, तो ये रहेगा, करेक्ट? ये समझ में आया क्या आपको? तो ये के मतलब क्या है? ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, पता है ना ये? यस सर। गैमा एस मतलब सॉइल का यूनिट डेंसिटी, वेट ऑफ सॉलिड्स। या यूनिट वेट ऑफ सॉइल मतलब वो जनरली सैचुरेटेड लिया तो 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लेते हैं जनरली। ड्राई रहेगा तो 18 रहता है। और ये मेरा एच, दिस इज एच, टोटल एच। टोटल एच मैंने ये फॉर्मूले में डाला तो ये आएगा मेरा ऑर्डिनेट, और ये इसके ऊपर का एच डाला फॉर्मूला में, तो ये ऑर्डिनेट आएगा मेरा। समझ में आया क्या? यस। बिकॉज इट इज लीनियरली वेरिंग। सो ये हमारा लैटरल प्रेशर है सॉइल का। सर ये गामा एस की वैल्यू तो जियोटेक रिपोर्ट में नहीं दी होगी क्या? सॉइल टू सॉइल वेरी करेगी, आपने 18 और 20 बताया, तो आई मीन वेट ऑफ सॉइल, वोल्ट वो ऑफ। नहीं उतना देते, जनरली 20 इज द सैचुरेटेड लेके आगे जाने का, क्योंकि कोड में भी देते हैं ना सब। सी मेनी टाइम्स वी डोंट गेट एवरी डेटा, बिकॉज सॉइल भी इतना वेरिएशन रहता है अंडरग्राउंड इट इज वेरी, देयर इज लॉट ऑफ वेरिएशन। सो जनरली क्या बोलता है कोड? इट गिव्स कंजर्वेटिव से क्या बोलते हैं, वैल्यूज। सो वो कंजर्वेटिव वैल्यू लेने का और डिजाइन करने का वही आसान है ना, क्योंकि इतना अलग अलग सॉइल की डेंसिटी, सॉइल का डेंसिटी एक्चुअली इट इज ऑलवेज लेस देन द 80 ना। 16 रहता है, कभी 15 रहता है, कभी 16.5, 17। इट्स ऑलवेज लेस देन व्हाट वी अज्यूम, बट वी कैनॉट guarantee that underground क्या soil का properties है. So it is better go with this 20. So for saturated 20, for dry 18. Now K gamma, K बोल रहा था ना मैं, KA. So KA मतलब 1 minus sin phi upon 1 plus sin phi. So ये phi का वैल्यू हमने 27 है ना, वो ये मिलता है हमारे जियोटेक से, ये डालने का यहाँ phi का वैल्यू। So this K you get 0.375 in our case. Gamma is 20, H is 4.5. अगर ये 4.5 पता है ना, ये मेरा प्लिंथ लेवल है और ये मेरा बेसमेंट लेवल है, which is 3.3, and below that मेरा फाउंडिंग स्टार्टा है टोटल 4.5 लेवल पे, as per ये क्या बोलते हैं जियोटेक्निकल रिपोर्ट। तो हाउ मच आई एम गेटिंग के गैमा एच 33.8। ये समझ में आया प्रेशर डायग्राम? ये समझ रहे हैं ना आई थिंक? यस सर। सो अभी ई टैब ने थोड़ा सा क्या बोलते हैं, इतना आसान तरीके से तो दिया नहीं हमें वो डालने के लिए। उन्होंने लोड का फंक्शन दिया है, व्हेन वी अप्लाई द लोड ऑन द शेल्स दे गिव दिस ax प्लस by प्लस cz प्लस d। ये फंक्शन डिफाइन करने का उसमें। अब ये थोड़ा सा ये है ट्रिकी,
अभी ये समझने के लिए थोड़ा सा मैं बताता हूँ। अभी ये हमारा वॉल है यहाँ, जो हमने मॉडल किया ना, ये प्लेट शेयर वॉल हमने मॉडल किया ना, या रेड वाला। लेट मी गो यस सर। पर ये 3D में। यूनिफॉर्म थिकनेस की कैसे है सर? प्रेशर नीचे बढ़ रहा है तो थिकनेस नीचे ज्यादा होनी चाहिए। ये वॉल थिकनेस है, इट्स अ ज्योमेट्रिकल थिकनेस है, नहीं एक्चुअली उसका सॉइल का प्रेशर का सवाल नहीं है कुछ। नहीं ठीक है, ओके, आई अंडरस्टूड कि यूनिफॉर्म थिकनेस लिए, बट शुडंट इट बी वेरिएबल थिकनेस? क्योंकि नीचे प्रेशर ज्यादा है तो उसकी थिकनेस ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, वो ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज योर वैल्यू इंजीनियरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन वे, वो कर सकते हैं ना वैसे। लेकिन वो मॉडलिंग के टाइम ये इतना नहीं सोच सकते ना, क्योंकि हमारे मॉडलिंग के टाइम तो कुछ भी नहीं रहता ना प्रॉपर, और उसमें भी अलग अलग पाते हैं। यू कैन डू इट, यू कैन ऑप्टिमाइज इट वेरिंग, बट हमारा टॉप में भी स्लैब है, तो मेनी टाइम्स कंस्ट्रक्शन भी डिफिकल्टी आ जाती है अगर हम इसे क्या बोलते हैं, स्लोपिंग लेंगे तो वेरिएशन। टॉप की स्लैब पे सर उसकी स्लोप से क्या फर्क पड़ेगा? वो तो आई मीन डेप्थ के अलॉन्ग जा रहे हैं ना, ऊपर तो जाने के बाद उतनी विड्थ होगी जितनी मतलब बीम की हाँ, विड्थ नहीं आती है नहीं क्या, लगभग। लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए डिफिकल्टी आ जाती है कि ऊपर से स्लैब भी आ रहा है, वो टेढ़ा करने का, ऐसे देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज आल्सो। पीपल प्रिफर यूनिफॉर्म थिकनेस इफ दे आर हैविंग इश्यूज विद द कंस्ट्रक्शन। सो ये तो ये फिर ये चॉइस का इशू है, मतलब इट्स अ चॉइस इशू। इफ यू कैन डू इट, एनालिसिस डिजाइन तो कर सकते हैं हम, कंस्ट्रक्शनली इफेक्टिव है, उसका डिटेलिंग वैसे उस हिसाब से देना पड़ता है, वो सब है ना। क्योंकि अगर मैं यूनिफॉर्म ऐसे देने लगा तो लेट्स क्या बोलते हैं, तो फिर सर स्ट्रेंथ, ठीक है, आई अंडरस्टूड कि ऐसे नहीं कर सकते, बट तो फिर क्या हम उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो नीचे चाहिए वही ऊपर तक देंगे फिर? हाँ वही देते हैं। अभी ये तुम जो बोल रहे हो वो ऐसे होना चाहिए, ऐसे करेक्ट। फिर यहाँ मेरा बेसमेंट है, ये मेरा प्लिंथ है ना, समझ में है ना। अभी इसका मैं क्या स्लोपिंग करके ये ऐसे टेढ़ा लेके गया ना, और यहाँ इसको फुटिंग भी आएगा ना, सॉरी, यहाँ ये और ये टेढ़ा ऐसे जाएगा, और इसकी फुटिंग पे ये टेढ़ा ऐसे वॉल जाएगा, तो ये सब कंस्ट्रक्शनली डिफिकल्ट रहते हैं। और ये बाहर की साइड है मेरी, जस्ट अ मोमेंट। यस, सो वो देयर में भी कंस्ट्रक्शन डिफिकल्टीज की फुटिंग पे वो टेढ़ा जाएगा वॉल, तो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज। एंड स्टिल इफ यू फील कि एज अ डिजाइनर नो आई विल गिव इट टू देम एंड लेट देम डू इट, सो इट्स ओके, दे कैन डू इट। तो ऐसे होता है, वैसे कुछ नहीं। अभी व्हाट यू आर सेइंग कि वो नीचे जितना लगेगा उतना मोमेंट की वो देखा गया, तो देर इज अ टॉप स्लैब, देर इज अ टॉप स्लैब, then there is a mid slab overall here also, and then it is going down this wall. अगर इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालोगे, if you do that, so it will be something like this. Either if you consider this as a fixed, तो ऐसे आएगा ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, समझ में आएगा? ऐसे कुछ तो आएगा। तो क्या होता है, देर इज अ गुड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेंडिंग मोमेंट ओवर द हाइट। तो व्हाट यू आर सेइंग is applicable only for the pure cantilever walls. अगर प्योर कैंटिलीवर रहेगा ना, तो देन वॉट एवर योर सजेशन इज देयर, इट इज अ गुड सजेशन। ऐसे टेपर्ड ले लो, लेट्स से, बिकॉज इट इज अ प्योरली कैंटिलीवर वॉल। बट व्हेन इट इज अ प्रॉप्ड कैंटिलीवर, मतलब ये यहाँ स्लैब है मेरा, यहाँ स्लैब है, तो देर इज अ गुड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेंडिंग मोमेंट, तो फिर यूनिफॉर्म थिकनेस इज अ गुड चॉइस इन दैट केस। ओके, देन फिर यहाँ अभी ये देखा ना गया, इफ यू सी द, ये यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी है सब। अभी ये लोकल एक्सिस इसका कैसे देखते हैं हम? वो डिस्प्ले में शो लोकल एक्सेस।
शेल असाइनमेंट्स लोकल एक्सेस, करेक्ट। क्यों नहीं रहा? वो सर आपने व्यू वो सेलेक्ट नहीं किया होगा क्यों? नहीं शायद। वो क्या है, मेरा स्क्रीन रिजोल्यूशन का कुछ इश्यू है, मतलब ये नीचे वाले टैब्स नहीं क्या? सर अभी बैकग्राउंड में प्लान व्यू सिलेक्टेड है, तो इसलिए उसमें 3D व्यू में शो नहीं हुआ। आई थिंक दिस इज द रीजन। नहीं नहीं, यहाँ ओके का बटन नहीं आ रहा ना, इसकी वजह से हो रहा है। हाँ एक नहीं, फिर भी नहीं हुआ। ठीक है, आई शो दिस डायरेक्टली। अभी ये वॉल है ना, वॉल का लोकल एक्सेस दिखता है यहाँ आ रहा है, इसमें आना चाहिए था ना वो। I got it. Now you can see, दिख रहा है ना यहाँ, ये ब्लू कलर, ग्रीन एंड रेड, राइट? कैन यू सी दिस? यस सर। दिस इज ब्लू। सो ब्लू हमारे ये केस में कौन है? हु इज दिस ब्लू? ज्यादा नहीं इमेजिन करने का, ब्लू इज एक्चुअली ये एक्स है, हाँ, देन दिस इज जेड एंड दिस इज वाई। अभी ये हमारा ये दिख रहा है ना, ये एक्स वाई और जेड है ना, गेटिंग? यस सर। So we are putting the loads in this direction actually. आ रहा है कि समझ में? ये x, z और y है। तो ये समझ के लीजिए पहले, एक्सिस मतलब वो है कि हमारा लोड उस डायरेक्शन में जाने वाला है। अभी कि कौन से डायरेक्शन में लोड जाएगा फिर हमारा? ना वो जो थे x डायरेक्शन पे ना, x है ना, तो वेयर यू वांट टू पुट द लोड? इन x डायरेक्शन, करेक्ट? यस। x डायरेक्शन पे, देन z और y। अभी ये क्या है, इन्होंने बहुत सारा हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स माइंड यूज करने के लिए कुछ तो फंक्शन फॉर्मेट में दिया है, बट इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स वेरी इजी। सो नो वेरिएशन इन x एंड y। यहाँ वेरिएशन बोल रहे हैं, हमारा वेरिएशन क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ तक वेरी हो रहा है ना। यहाँ 0 है और यहाँ मेरा कुछ तो 33 पॉइंट ये है ना 8, समझ में आया? यहाँ 0, यस सर। 33.8। सो वेरिएशन इज अलोंग z डायरेक्शन। अभी यहाँ थोड़ा सा वो ट्रिकी इक्वेशन डेवलप करना पड़ता है हमें। सो x एंड y के में वेरिएशन नहीं है, इसलिए इस इक्वेशन में ये 0 डालने का। x is 0, y is 0, okay, because the pressure variation is only in the vertical direction. अभी इक्वेशन क्या बन गया हमारा? प्रेशर इज इक्वल टू CZ प्लस D। समझ में आया? यस सर। सो CZ प्लस D मतलब, अभी वॉल 1 ये दिखाया है ना हमने, वॉल मतलब ये ऊपर वाला वॉल है, सॉरी कितना, कौन सा वाला है ये? वॉल 1 इज, हमने क्या लिया? ये वाला वॉल 1 ये है हमारा, हाँ। तो क्या बोलते हैं हम यहाँ? 24.79 ये प्रेशर है हमारा ना, ये नॉन है ना वैल्यू हमें, या नहीं? इट्स नॉन वैल्यू ना। यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं ना इंटरपोलेशन से। ये 33.8 है, तो यू कैन गेट दिस वैल्यू, करेक्ट? यस और नो? यस सर। क्योंकि ट्रायंगल है ना, ये पता है ना हमें, ये हाइट के लिए 4.5 के लिए इतना वैल्यू, तो 3.3 के लिए कितना, तो वो 24 आया है। तो वी आर पुटिंग दिस 24.79 इक्वल टू C इंटू टॉप में कितना z है मेरा? 0, z इज 0 प्लस d। सो d का वैल्यू कितना है मेरा? 24.79। तो सर टॉप पे z 0 है, तो फिर टॉप ऑर्डिनेट पे वॉल पर में प्रेशर डायग्राम में प्रेशर भी तो 0 है, तो फिर वो भी 0 होना चाहिए था लेफ्ट में। नहीं, वो सी ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए बोल रहा हूं मैं। सी इक्वेशन में ये तो 0 हो गए, समझ में है? CZ प्लस D, प्रेशर इज इक्वल टू CZ प्लस D। अभी प्रेशर का वैल्यू मुझे ये लोकेशन पे नोन है, सो आई पुट हियर, करेक्ट? तो z भी इसी लोकेशन का देना था। Z is 0 here actually. This is 0, not top. Z is 0 at this location. समझ में आया? For this wall, ये दो वॉल्स है अलग अलग, डोंट फॉरगेट, क्योंकि हमने दो बार ड्रॉ की नहीं। ये एक वॉल है मेरा और ये एक वॉल है। Z is 0 क्योंकि Z यहाँ 0 है ना, देखो ना बॉटम से ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ मेरा Z का वैल्यू कितना है फॉर दिस वॉल? 0। अच्छा, ये ऊपर वाली वॉल है जो नीचे बना रखी है, वॉल 1 वॉल 2, या ओके। ये वॉल 1, हाँ ये वॉल 1 के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये वॉल 1 के लिए बेस इज 0 और ये बेस पे कितना प्रेशर है मेरा? 24.7। सो
सो C इंटू 0 प्लस डी, तो डी मेरा ये वैल्यू आया। तो एट टॉप प्रेशर कितना है मेरा एट टॉप, नोन है ना, 0। सो 0 इज इक्वल टू C इंटू जेड मेरा 3.3 है, यहाँ से यहाँ तक, प्लस 20 डी, मतलब अब मैंने यहाँ का डी निकाला तो यहाँ डाल दिया, तो मेरा C का वैल्यू निकल दिया। समझ में आया? यू गॉट दिस? यस सर। यू रेफर दैट DBR, यू विल कम टू नो एक्चुअली ये इतना ही है। तो ये C का वैल्यू मुझे पता चला और मुझे D का वैल्यू भी पता चला है। सो अभी इक्वेशन के लिए तो मुझे अभी C पता है, मुझे D पता है। अभी ये वॉल मैंने लिया तो ये मेरा Z कितना है यहाँ, 0। तो एट Z0 मतलब बेस का आने वाला है मेरा। एट Z इज इक्वल टू 0, P इज इक्वल टू 33.8। सो वो मैंने डाल दिया और D निकाल दिया फिर से ये वॉल के लिए। और बाद में Z एट 1.2 मेरा प्रेशर इतना है 24 पॉइंट ये, तो वो इक्वेशन में डाल दिया और C निकाल दिया। तो हमें ई टैब में ये सब C के वैल्यू और वो डालने पड़ते हैं उसमें। तो आई थिंक इसमें डाल दिया है, वो है क्या? ये दिख रहा है कि ये अभी ये दिखाने के लिए ना आप एक काम कीजिए, से यू ट्राई एट होम एक वॉल ही निकालने का सर, एक छोटा मॉडल बना के, और वॉट एवर आई सेड यू पुट हियर, वही प्रेशर डालो जो हमने DBR में निकाला है। ये सब 0 ये लिखा है ना, अभी क्या है, मैं ब्रेक नहीं कर रहा मॉडल बिकॉज उसको टाइम बहुत लगता है। आई एम नॉट जस्ट मिनिमाइजिंग इट बिकॉज ये मॉडल मैंने ब्रेक किया तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। सो आई थिंक कंसेप्ट समझ में आया क्या? सिर्फ वो मैं पूछ रहा हूँ। यू कैन रीड इट, इट्स वेरी इजी कंसेप्ट। यू गॉट दिस? और ये C और D के वैल्यूज है ना, वो ही सिर्फ वहां डालने हैं ये ईटैप मॉडल में, लोडिंग में, शेल लोड्स में। यू ट्राई इट एट होम एज अ प्रैक्टिस, एंड अगर उसमें कुछ क्वेश्चन आए तो यू आस्क। तो ये जस्ट गो थ्रू दिस। और ये वॉल लोड्स हमने फिर यहाँ डाल दिए, ये वॉल पे, सभी वॉल्स पे, ऑल वॉल्स ये सब। गेटिंग? यस सर। ये तो सर इसमें इसकी लोकल ई टैब की लोकल एक्सिस का कोई मीनिंग थोड़ी है हमारे लिए, क्योंकि हमने तो एक्स उधर ही माना है जिस साइड, मतलब एंट्रेंस की तरफ अंदर की साइड, इन साइड में एक्स माना है। तो इसको मॉडल को घुमाएंगे दूसरी साइड जाएंगे तो ई टैब का तो चेंज हो जाएगा एक्स। नहीं वो उसका ले रहे हैं ना, लोकल एक्सिस का ले रहे हैं, वो प्लेट का एक्सिस ले रहे हैं। प्लेट का एक्सिस भी वैसे ही है ना, ये यहाँ था ना वो रेड वगैरह, वो सेम ही एक्सिस है ना। वी आर पुटिंग टू द प्लेट एक्सिस। प्लेट, फिर प्लेट घुमाए तो वो अंदर यहाँ जाएगा ना ऐसे, वो एक्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं, मेरे को आपकी बात समझ नहीं आई। यहाँ देखो, नहीं फिर से ऑन करता हूँ, लेट्स। ये देखो, ये ब्लू कलर है ना, इसका ब्लू कलर अंदर है और हमें प्रेशर इसी डायरेक्शन को देना है ना, अलोंग द ब्लू कलर लाइन, करेक्ट? ये भी ब्लू कलर अंदर ही है ना। यस यस, ओके तो सर, वो आई प्लेट नोट का इट। एक्सिस तो आपने प्लेट घुमाने के बाद भी वो अंदर ही जा रहा है, ब्लू कलर। दैट मीन्स वॉट एवर लोड्स यू विल पुट, इट विल गो इन दिस डायरेक्शन, पीछे वाला रहेगा तो अंदर दिखेगा यहाँ। लेट्स सी हियर, ये वाला वॉल रहेगा तो वो भी अंदर है। बट यू हैव टू वेरीफाई, दिस इज वन ऑफ द की, क्या बोलते हैं, चेक करना पड़ता है। गलत हो सकता है क्योंकि ये मशीन है, मॉडल है, गलतियां कर सकते हो। हमारा एजम्पशन भी नहीं तो एज्यूम करके डाल देंगे और बाद में, लास्ट टाइम मैंने बताया कि चेक इट, ऑलवेज चेक इट, डोंट एज्यूम। मैंने अभी इसको घुमा दिया है, अभी मॉडल को घुमा दिया मैंने। इफ द ब्लू इज इनसाइड, यस, ये देखो ब्लू इनसाइड है।
दैट मीन्स मैंने कहाँ से भी वॉल मॉडल किया तो वो लोड अंदर ही जाने वाला है, बाहर से अंदर। Getting? Yeah, yes, sir. That's it. So for the modeling basic क्या हमने डाला है उसमें, we have discussed this, and from say next sessions we will discuss on the output DBR and what are the output important aspects apart from our bending moment and shear force. हमारा जो बेस शेयर कितना है, वो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम का स्केल फैक्टर, ड्रिफ्ट वगैरह बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं. आई थिंक दोज आर नॉट डिस्कस्ड इन आवर G+5 बिकॉज इट वाज क्वाइट बेसिक प्रोग्राम एंड बेसिक हमारा था ना, उसमें कवर हो रहा था. अभी थोड़ा सा एडवांस लेवल पे भी थोड़ा डिस्कस कर देंगे हम हाई रेस बिल्डिंग में. सो व्हाट आउटपुट DBR वी हैव टू सबमिट टू द HRB कमिटी. तो वो क्या क्या रिजल्ट्स मांगते हैं हमसे, तो वो सब रिजल्ट्स का हम डिस्कशन करने वाले हैं फ्रॉम द नेक्स्ट सेशंस. तो वी विल हैव मोर डिस्कशन ऑन द आउटपुट ऑफ द मॉडल, और वो डॉक्यूमेंट पे डिस्कस कर देंगे हम. ठीक है. Hello. हेलो. Hello. Yes. Sir, in modeling part, if you brief me about the shear wall and retaining wall modeling, it will be better. What? Pardon, please. Hello. I think part shear wall modeling and retaining wall modeling. Huh. I'm not getting you. Can you again ask me? There is a voice. Sir, in modeling part, hello. Am I audible? Yes. So just we have model G+5 building, so we can do it here also. Mhm. For shear wall and retaining wall, Mhm. if you brief on that modeling part of shear wall and retaining wall. it would be Modeling only we can draw it by using this define better. Is there difference shear, between the shear wall and column? draw it. Na, that's it. If I want shear wall from this point to this point, then select this. There is a shear wall cursor over here. Na, here you can see here. Draw walls. So whatever you define the walls, you just click over here and draw from this point to this point. Whatever point you want, you draw it from this grid point to this grid point. For Yeah. lift portion is the same. Yeah, for lift portion also. We have the grid points. Just draw from here to here, here to here, here to here, here to here, here to. That's it. And it's a shell thin we generally take for the walls. Shell thin. Okay. Okay, then we'll continue to the next session regarding the output DBR and other results which are important from high-rise building point of view, and there are some many advanced and important aspects which needs to be considered, and we will continue that from the next session. Okay. I hope. Yes, sir. Good Yeah. night. Thank you. Yeah, good night all of you, and thank you.